Good evening, everyone. I am Dr. Liaquat, and I am your host for tonight. It's a great honor for me that we are celebrating our late ML Saigal sir's birthday. He's our Mahaguru. His birthday anniversary. This is the 95th birth anniversary of late Dr. ML Saigal sir, because of whom we could make this mind so easy that we understand the delusions, we understand injury, we understand there are so many things that we have understood only because of the vision of Saigal sir, that he understood mind and he interpreted it in a very simple language, which Dr. Hahnemann, Dr. Kent wanted us to understand. So for us, he is our Dr. Kent. So it's a pleasure for me. And one more thing, cherry on the cake, we have a very great and very humble homeopath as a lecturer today, Dr. H.S. Matharu sir. People from the mind method doesn't need his introduction at all. He is the man. He is the senior most faculty of Saigal School of Homeopathy. And Dr. Matharu sir has passed his homeopathy from Medical College, Chandigarh. And sir has more than 42 years of experience in mind and in homeopathy. He is one of the very close allies, one of the very close students of late ML Saigal sirs. Sir is a very humble, very humble doctor. I know sir since last almost 10 years. And anytime I call him, sir always picks up the phone. If he doesn't pick up the phone, he calls back. That is what I have seen. And there are so many things that we can talk on, sir. But today I want to hear it from him. One request I would make Dr. H.S. Matharu, sir, to please share his experiences with ML Saigal, sir. Another esteemed person who is joined today is Maan sir, also is there present with us. Dr. Amarjit Singh Maan sir, welcome Maan sir. And he's another respected, revered elder brother. I always call Mansar my elder brother. He is my idol. I look up to him for many things that he's been doing. His social service, his special work. I always mention anywhere I go about the de-addiction, about the illegal sale of liquor in Punjab. Sir has fought against all the political parties, all the anti-social elements of Punjab. I remember Amarjit Singh sir, and I always really wish to become him, member of parliament from Punjab. It's always a prayer that I would always want to see Amarjit Singh Maan sir as representing homeopathy in the Parliament of India. We will always pray for that, sir. So today I'm so blessed. I feel so blessed that Matharu sir is there, Maan sir is there, and Sanjay Saigal sir is coming to the lecture in a very short while, friends. So Sir before Rajiv. wasting much of time, my God, and my what I can call a saint actually. एक संत को आप क्या कहे, गुरु कहे, भाई कहे, मार्गदाता कहे, क्या कहे? संजय सहगल सर हमारे लिए संत से कम नहीं है। और मैं ज्यादा संजय सहगल सर के साथ बारे में बोल नहीं पाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। संजय सहगल सर आप सब जानते हैं, इज सन ऑफ लेट एमएल सहगल सर, pioneer faculty of SSRS school, and to understand mind, soul, uh, rubrics, philosophy, human being human, being the real homeopath, being the benevolent person. I have learned so many things from Sanjay Sehgal sir. I used to call myself Eklavya of school of ROH, but sir gives so much of love to us. There are things which I'm going to reveal about sir on the 100th lecture, inshallah. So without wasting much time, I would request Matharu sir to start the lecture.
In between, friends, stay tuned. We are going to celebrate our late Cycle Sir's birth anniversary also. So हम क्या करेंगे कि हम मथारू सर पर ही छोड़ देंगे। सर आप पढ़ाइए, और जहां पर आपको लगे कि एक छोटा ब्रेक लेना है, वहां पर हम सर का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लेक्चर शुरू कीजिए, और साथ में आप सैगल सर के साथ वाली आपकी यादें जो है वो जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। ओवर टू यू मथारू सर। थैंक्स। आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। डॉक्टर लियाकत जी ने इतना बड़ा प्रयास किया, और इन्होंने जब भी मुझे कॉल किया तो मैं हमेशा इनके साथ रहा हूँ। आगे को भी रहने का वादा करता हूँ। जब भी कभी होम्योपैथी में कोई भी बात होगी तो मैं आपके साथ रहूंगा। और आज तो स्पेशल दिन है हमारे लिए। हमारे गुरु का कल जन्मदिन आ रहा है। हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हमारे लिए एक अत्यंत खुशी का दिन है कि हम उनके साथ रहे। साथ बेशक कुछ घंटे का हो, कुछ दिनों का हो, कितनी भी समय का हो, इसका कोई मायना नहीं होता। बस साथ मिला इस जीवन में, और उनके साथ होने का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य रहा है। और कुछ बातें मैं आपसे शेयर करनी चाहूंगा सर के साथ बिताए हुए पल। सर के बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात हो सकती है। पर सर इतनी ज्यादा हम्बल थे, इतना ज्यादा उनमें डेडिकेशन थी अपने सिस्टम के बारे में। उन्होंने बहुत ही मुश्किल दिनों में भी होम्योपैथी को अपना एक मोटिव बनाया, और उनके लिए उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की। इतनी मेहनत की कि अपने परिवार को भी उतना वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए जितना उन्होंने होम्योपैथी को दिया। कठिन समय में भी उन्होंने होम्योपैथी के लिए बहुत कुछ किया। उन समय में जब होम्योपैथी के बारे में बहुत लोगों का एक मोटिव नोशन होता था कि होम्योपैथी सिंपली क्रोनिक डिजीजेस में काम करती है, और इक्का दुक्का कुछ केसेस जो सामने आते थे वो उन्हीं को देख करके सर ने ये देखा। अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में उन्होंने अपने साथ पेशेंट को रख के, उनको साथ उनको बिठा करके उनके ऊपर उन्होंने अपनी सिस्टम को जब देखा, घटना घटी, तो उन्होंने इस सिस्टम को इजाद किया। उन्होंने होम्योपैथी में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया। जो रेवोल्यूशन हमेशा होम्योपैथी की जो फैटर्निटी है, हमारे आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनका उनकी ऋणी रहेंगी। हम सैल्यूट करते हैं सर को कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा, इतना अच्छा सिस्टम दिया जिसके माध्यम से हम आज एक्यूट इमरजेंसीज भी, क्रोनिक केसेस भी हम ठीक कर पा रहे हैं। सहगल परिवार के हमारे गुरु मास्टर डॉक्टर एम एल सहगल साहब जी, इनका कल आने वाला जन्मदिन आ रहा है। उन्होंने होम्योपैथी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा कर्म कर दिया हमारे लिए। और उनके दोनों बेटे आदरणीय हमारे टीचर डॉक्टर संजय सहगल साहब, डॉक्टर जोगेश सहगल साहब, उन्होंने हमें हर वक्त हमें पढ़ाया, हमें शिक्षा दी। हम उन्हीं की शिक्षा को लेकर के जो भी कुछ थोड़ा बहुत सीख पाए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं एक दो एग्जाम्पल सर के साथ बीते हुए दिनों में मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। एक बार मुझे मौका मिला सर के साथ ट्रेन में सफर करने का। हम लोग दिल्ली ट्रेन स्टेशन के ऊपर हम चढ़ने वाले थे, तो सर भी मेरे साथ रुके हुए थे। एक पैसेंजर ट्रेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था,
तो उसके टांग में कोई दिक्कत थी, पैरालिटिक टाइप वो उसकी कंडीशन थी। वो कोई भी आता उसको थोड़ा पीछे करके वो अपने ट्रेन में चढ़ जाता, वो फिर थोड़ा वेट करता रहता बेचारा, वो फिर चढ़ने की कोशिश करता, तो फिर दूसरा आदमी आता उसको फिर पीछे कर जाता। वो ऐसा थोड़ा कर रहा था। तो सर मेरे को एक वो तो कहने लगे कि तुम देख रहा है क्या हो रहा है। सर मेरी तो इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं है, सर आप ही बताइए। ये महसूस कर रहा है, अपनी पोजीशन को भी देख रहा है, और उनको भी देख रहा है कि जो लोग फटाफट ट्रेन में चढ़ रहे हैं, लेकिन फिर ये अपने हालात के साथ समझौता किए हुए फिर रुका हुआ है। तो वहां पर सर ने मुझे ये रूब्रिक सिखाया: रिकॉग्नाइज द रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट। रिकॉग्नाइज द रियलिटी बट कैन नॉट मूव। उनको उसको अपनी पोजीशन का पता था कि मैं इतना जबरदस्त उनको हटा के नहीं चढ़ सकता। तो उसने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, और जब लोग चले गए तो वो उस चला। तो सर ने ये एक छोटे से समय में इतनी बड़ी शिक्षा मेरे को दी। तो मैं आज भी बहुत बार इसी रूब्रिक को, जिसमें कॉकुलस मेडिसिन हम देते हैं, तो मैंने हजारों बार इसको यूज किया है। जब कोई भी आदमी अपनी पोजीशन को देखते हुए, उसको स्वीकार करते हुए एक्शन करता है, या उसको स्वीकार करता है, कुछ भी हो, मैटर कुछ भी हो, बीमारी कोई भी हो। ऐसा ही एक छोटी सी एग्जांपल और मेरे याद है। गुरु साहब के, जो हमारे गुरु जी, उनके घर के सामने एक मंदिर हुआ करता था। एक बार मुझे मौका मिला सर के साथ टहलने का। सर ने बोला कि तू मेरे साथ आ, हम चलते हैं टहलने। हम टहलने गए तो मंदिर में एक पुजारी था। वो पुजारी ने सर को बोला कि मेरे को कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो कि गले में कुछ खराबी है, बस और तो कुछ नहीं है, बस यही थोड़ा सा है, इसकी वजह से थोड़ा शरीर अच्छा नहीं फील कर रहा है। तो उनको सर ने बेलाडोना मेडिसिन दी। तो वो चीज मैंने वहां से सीखी सर से। मैंने इतनी हिम्मत तो नहीं थी उनसे बात करने की, सामने बोलने की कि सर क्या है। तो कृपा की सर ने, तो मैंने हल्का सा हौसला किया, मैं पूछूं कि सर ये कैसे आपने देखा। सर ने बताया कि ये पेशेंट कह रहा है कि उतनी वो हिम्मत शक्ति सी नहीं है, और सब ठीक है, ये गले की तकलीफ है, बस इसको ही थोड़ा ठीक कर दो, बाकी सब ठीक है। सर ने बताया कि ये डिल्यूजन पुअर में लेंगे हम, इसकी वीकनेस जो महसूस कर रहा है, तो पहले से कुछ कम फील कर रहा है, और बाकी सब ठीक है, डिल्यूजन वेल्थ में लेंगे। और ऐसा फील महसूस कर रहा है जैसे उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही हल्के फुल्के से बात कर रहा था। वो फ्रेबुलस में लिया सर ने, और उसको बेलाटोना दी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा सर के साथ। उसके बाद हम जब वापस आते हुए आए, तो उसी पेशेंट को हमने पूछा था कि अब कैसे, सर भी मेरे साथ ही थे, ये कैसा फील हो रहा है। उन्होंने बोला कि आप चले गए तो 5 मिनट के बाद तो मैं अच्छा फील करने लगा। और छोटी सी एक बात और, जब हम शेयर कर रहे थे उस पार्क में, सर मेरे पास बैठे हुए थे। तो सर बेंच के ऊपर बैठे थे, मैं गुरु जी के चरणों में बैठा था, उनके पाँव दबा रहा था। तो वो मेरे को शिक्षा दी उन्होंने। बहुत अच्छा मेरे को फील हुआ कि आज वाकई गुरु के साथ होने का एहसास मुझे हुआ। सर ने बोला कि काका, होम्योपैथी की सिद्धि तुम कर लो, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। दुनिया के हर सुख तुम्हारे पीछे भागेंगे, हर सुख मिल जाएगा, बस होम्योपैथी की सिद्धि अनिवार्य है। तो मैंने हाथ जोड़ के उनके चरणों पे नमस्कार किया, और कोशिश की सीखने की। और उस सीखने के बाद जो भी मैं थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ, वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। तो कल सर का 95th जो जन्मदिन आ रहा है, हम कल भी उसको सेलिब्रेट करेंगे। आज सुविधा के अनुसार डॉक्टर लियाकत जी ने आज का मौका दिया, आज हम उनके साथ शेयर करेंगे। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, डॉक्टर संजय सर, हमारे आदरणीय टीचर साहबान हमारे आज साथ में है,
मैं उनकी इजाजत चाहूंगा। सर पहले बोलेंगे तो हम सर अभी सेलिब्रेशन जो है सेरेमनी शुरू करें, या हम पहले थोड़ा केस देखें? सर हमारे साथ हैं, तो मैं सर की इजाजत चाहूंगा। सेगल सर आप है ना? परी सर ने फोन कर बेटा। मानसी हो करेल. सरांशी बोल विचार कर. सर मला दिसत नाहीये. जी हम दे माला दिसत नहीं है, माला दिसत आप मुझे दिख रहे हैं बेटा, आप मुझे दिख रहे सर हैं। सर सर आपका आप वीडियो गुड इवनिंग ऑन सर। कीजिए. हाँ बंद है आज बेटा, कोई वीडियो. बात नहीं, रुक जाओ। मैं परिणीति आ गया फोन, बेटा फोन मत कर, आ रहा है, मैं उस पे लैपटॉप पे पहुंच गया हूँ हाँ मैं सुन जी रहा सर. हूँ, है ना, मैं सुन रहा हूँ। और सर वीडियो ऑन कीजिए ना, अपन फिर पहले केक काट लेते हैं फिर हम बातें करेंगे. नहीं नहीं नहीं, लेट हिम डू। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। सर हम पहले मैंने कॉपुलस पहले भी सुन हम लिया। सेरेमनी। चलो आपके साथ हूँ, चलो चलो। जी सर। डोंट मैं वेस्ट दिस हिमाचल टाइम, ये जाके। बच्चों का टाइम बड़ा प्रेशियस है। अभी भूमि का मान साहब का चेहरा देखो, उनको लगा 20 मिनट तो इसमें निकल गए, नमस्ते नमस्ते में ही कुछ किया हो नहीं है। चलो थैंक यू, मैं बंद कर रहा हूँ। सो आई विल बी देयर, आई एम हियर लिसनिंग एवरीथिंग, राइट, आई एम विद यू पीपल। सर मान सर आपने हाँ भी थोड़ा हाँ सा. सर। हाँ हाँ सर, हम सेरेमनी शुरू कर जा रहे हैं। जी 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 ये सर केक आपका काट रहे वीडियो हैं बन. पहले। हाँ जी हाँ हाँ, हाँ. मैं जानती हूँ। हाँ अभी नीचे जा रहा हूँ सर, नीचे रखा जी हुआ है। जी हाँ जी आराम हाँ, आराम. आइए। हाँ अच्छा सॉरी, वेयर इज गॉन। ओहो, ही इज मैं गोइंग कह रहा डाउन. था, मैंने सोचा शुरू करें। नहीं सर केक हाँ काट लेते हैं फिर. हाँ सर, मैं इसका बैक कैमरा कहाँ से? चलो भाई, सर मैं की भी फोटो प्रत्यक्ष हो भी। जाता हूँ। हाँ सर थैंक यू. इसमें दिख रहा है ना? जी हाँ जी जी नजर आ रहा है हाँ। सर. चलो मैं दूसरे वो से दिखाऊंगा आपको सबको। दूसरे जी. दूसरे दूसरा मोबाइल छोड़ नहीं, कोई नहीं, चलता रहने। अजीब सी रोशनी है भैया, चलो। हाँ वो पीछे से आ रही. ये रोशनी हमारे गुरु जी ने दी सर, आप जी ने हमें और आगे दी। ये आप सहगल परिवार की वजह से ही सब कुछ हो रहा है सर। इथे मनोजला आओ म्यूट जी। कर ग. तरी एक वीडियो मनोज बंद करनी स्वामीचं हे पड़ेगी। चालू हो आहे ऑडियो हो म्यूट सर. म्यूट कर. अब मैं हाँ सबसे रिक्वेस्ट हाँ, करता हूँ कि स्पीकर छोड़ के बाकी सब लोग म्यूट करें तो अच्छा रहेगा. कोई नहीं, चलिए जाओ। जी सर. हाँ, आप सब लोग मेरे साथ हैं ना? हाँ जी सर हाँ जी बिल्कुल है. हाँ। वाह. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरुर्विद्या सर्वकार्येषु सर्व साधु. Friends, we can clap. We can unmute and clap for the birthday. सरांना तू स्पॉटलाइट नाही केलंय म्हणजे अमन दीक्षित. केले सर. केले सरांनी अमनचा व्हिडिओ ऑफ ठेवले. अमन अमन अमनचा सरांना पण केले. हो. बाकी बाकी कोण कोण मध्ये येते काय. ठीक. अमन हमको भी केक पार्सल कर देना वहां से. दैट इज सो स्वीट सच लवली केक. अमन आपका ऑडियो बंद है बेटा. अमन ये त्याला अनम्यूट कर. अमन आपका ऑडियो बंद है. हाँ हाँ जी. तो फ्रेंड्स थैंक यू मधुर सर. मधुर सर आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक. हम सुन नहीं पा रहे अब. आपका ऑडियो ऑन कर दीजिए.
So we can see, yeah, हाँ perfect. हाँ हाँ जी जी सर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जी सर। हम गुरु जी के चरणों में नमस्कार करते हैं और आशा करते हैं कि हमें सद्बुद्धि मिले, इनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। हमारे टीचर्स का, डॉक्टर संजय सहगल साहब, डॉक्टर योगेश सहगल साहब, इनका आशीर्वाद, इनका साथ हमारे साथ बना रहे, ताकि आगे को हम इसी मार्ग पे चलते रहें और ज्ञान इनसे अर्जित कर रहे हैं, और इनसे ज्ञान अर्जित करके आगे होम्योपैथी के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। थैंक्स, आप सब लोग मेरे साथ रहे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्रधान सर। जी सर। हाँ मैं 2 मिनट आपको रोक के, मैं मान सर 2 शब्द अगर आप कहे तो फिर बहुत अच्छा हाँ लगेगा। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मान सर। We welcome our respected sir, Dr. Sanjay Sehgal ji today. I always considered our guru, our master as my father. Journey started in November 92 at Chandigarh seminar. Then our guru, our master, along with Dr. Sanjay Sehgal sir, Dr. Yogesh Sehgal sir, in February 93 came to Sangrur. We organized a seminar, and then we never returned back to any other technique. We are working continuously on Dr. Sehgal technique. We really salute their knowledge, their third vision, third eye. Really, it is a revolutionized homeopathy. No one explained homeopathy like this before Dr. M.L. Sehgal sir. They made dead rubrics live in mind section of each repertory. They added a few mind rubrics from their own treasure of knowledge. Today in Telegram, on WhatsApp, in every group, everyone is practicing on mind technique, on revolutionized homeopathy. A great contribution to the homeopathy after our founder, Dr. Samuel Hahnemann. I can say within a few minutes we reach to the minimum, depending on mind symptoms only. Yes. So quick to reach this minimum. The journey continued. We tended along with our other colleagues, as Dr. H.S. Mathadu, my friend, is here, Dr. Bhupinder Singh, Dr. Neelam Avtar Singh, Dr. Avtar Singh, Dr. Vinder Singh, and many others. We attended many seminars at Delhi also. Then we continued with our gurus, our sirs, Dr. Sanjay Sehgal sir, Dr. Yogesh Sehgal sir. A great contribution. Once a month coming from Delhi for 6 years, from 94 to 2000 at Sangrur. That was a great teaching. We are depending 100% on that teaching of our guru and our respected teachers, Dr. Sanjay Sehgal sir, Dr. Yogesh Sehgal sir. I really salute Dr. M.L. Sehgal sir, our father figure, our founder of revolutionary homeopathy. Thank you very much, Dr. Navole Lek sir. Dr. Mansi Patel, you are doing a great job. Inviting for webinar good practitioners on mind technique from all over India. Thanks again. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. I just gave him a call in the morning. Man, sir, I just gave a call in the morning, and here is the evening. The same freshman I spoke at 9:30 and the same freshman at 7:30, mashallah. God bless you with long health, sir, and long life.
एंड मे यू लिव वेरी लॉन्ग, एंड इंशाल्लाह हम लोग कम से कम 50 साल साथ में रहे सर, और आगे, और आपसे सीखते रहे। हमारे बड़े भाई मथारू सर, मान सर, मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। संजय सहगल सर भी आज बात करने वाले हैं, तो मैं आज सर को तो आज तो छोड़ूंगा नहीं। आज मैं संजय सहगल सर से कुछ ना कुछ तो बुलवाऊंगा ही बुलवाऊंगा, आज नहीं छोड़ना है। थोड़ा हम सीख गए हैं किस तरीके से बड़ों से बातें करवा लेनी है, किस वक्त वो खुश होते हैं, किस वक्त वो बोलना बंद नहीं, टाल नहीं सकते, तो थोड़ा सीख रहे हैं उनके कैसे इंसाइट करना है, inciting and reverence both continue in Sims. Oh my God, so sweet to see and talk with you people like this. It is such a family, sir, mashallah. All this because of Sehgal sir and Dr. Hanuman sir. So हम लोग इनका कितना शुक्र अदा करें, इनके लिए कितनी दुआएं करें, हमारी शब्द खत्म हो जाते हैं सर, आप लोगों के लिए दुआ करते हो। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स, मुझे पता है संजय सहगल सर को अच्छा नहीं लगता है बीच में ये करना, he always talks about the time of the students. So with respect to all the celebrities, all the seniors, I would request Dr. Matharu sir to please start his lecture and impart knowledge. Thank you, sir. Thanks. My friend Dr. Yasman has told many things about our journey with the Sehgal system, with Sehgal family. So, as Dr. Man said, there are very, very dead rubrics. जैसे हम देखते हैं कि मुझे बोला गया था कि मैं हिंदी में बात करूं, कि कुछ लोग हमारे साथ, ज्यादा लोग जो हिंदी में बात करना पसंद करते हैं, तो जैसे सर ने बिल्कुल ही ग्रेड्स को खत्म किया, ग्रेड्स को समझा, ग्रेड्स की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। फियर एक्सट्रावेगेंसी, उसमें एक ओपीएमसी दवाई है, लाफिंग स्पीकिंग वेल, बेलाडोना, तो ये ग्रेड के हिसाब से बिल्कुल पीछे आनी चाहिए थी। लेकिन आज के युग में इस प्रैक्टिस में बहुत आगे आने वाली मेडिसिन हैं जो रूटीन में हम यूज करते हैं। कोई एग्रेवेशन नहीं हम देखते, कोई एमुलेशन नहीं हम देखते, हम सिंपल स्टेट ऑफ माइंड, प्रेजेंस प्रेडोमिनेंट एंड परसिस्टेंट स्टेट ऑफ माइंड जो है, उसको हम मद्देनजर रखते हुए पेशेंट की भाषा को समझ के, उसी की भाषा के अनुसार, उसी का जो तवज्जो है वो किस चीज के ऊपर वो वजन दे रहा है, तो उसके हिसाब से हम उसकी मन की अवस्था को समझ के हम मेडिसिन देते हैं। ऐसा ही छोटी सी एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम एक्यूट में नहीं, हम क्रोनिक में भी कुछ ही समय में रिजल्ट लेना हमने लेकर के देखा है। ये पहले कभी था कि होम्योपैथी बहुत धीरे काम करती है, बहुत स्लो काम करती है, और मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि कोई भी क्रोनिक केस हो, कोई भी एक्यूट केस हो, विद इन 10 to 15 मिनट्स हम उसका रिजल्ट बिल्कुल सामने देखते हैं, उसको रिलीफ आना शुरू कर देता है। अगर आपकी मेडिसिन सही है तो आप 10-15 मिनट में पेशेंट को बिल्कुल ठीक होने के रास्ते में जाता देखेंगे, उसके चेहरे का नूर चेंज हो जाएगा, उसका देखने में आपको वो उसका हेल्दी लुक है तो उसमें प्लस होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ही मैं आपके साथ आज अक्यूट नहीं, आज मैं अक्यूट केसेस में मैंने बहुत ही अच्छी सक्सेस देखी है, बहुत ही अक्यूट इमरजेंसीज में भी डॉक्टर सहगल सिस्टम ने हमें इतना अच्छा रास्ता दिखाया और इतना अच्छा हमें रिजल्ट दिखाए हैं कि हम कभी सर की जो हमारे लिए ये देन है उसको कभी हम भूल नहीं सकते। तो मैं आज एक आपके साथ बड़ा ही क्रोनिक केस डिस्कस करूंगा। ये 51 ईयर्स के एक पेशेंट है, इनके प्लेटलेट्स काउंट काफी कम रहते थे बहुत ही सालों से, और कम से कम 15 साल से ये पेशेंट बार बार वो चेक करवाता रहता था, वो कम आते थे, और इसका बीपी 170 और 100 के नीचे नहीं जाता था, और शुगर 140 फास्टिंग थी। और ये मेरे पास आए कि इन्होंने बोला कि मैं आपके पास अपनी बात शेयर करने आया हूँ, मुझे बहुत तकलीफ रहती है
मेरा चेहरा उतरा हुआ है। मेरे पास उसकी वीडियो है, बट मैं वो फोटोज हैं पहले वाली और ट्रीटमेंट के बाद की, वो तो मेरे को शेयर नहीं करनी आती, मैं ग्रुप में डाल दूंगा उसको। तो उसने पेशेंट ने मेरे को बताया कि सर, जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ चेकअप करवाने के लिए, तो मेरा बीपी एकदम बढ़ जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि भाई, जितनी देर भी हम बीपी चेक करते हैं उतनी देर और आगे बढ़ता रहता है। वो मेरे को मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं। और जब मैं काफी देर के बाद अपने घर जाके चेक करता हूँ तो मेरा बीपी उससे कम हो जाता है। और जनरली 170 करीब तो रहता ही है, उसके ऊपर भी बहुत बार चला जाता है जब भी मैं चेकअप करवाता हूँ। ये जो प्रॉब्लम सी, उसने पेशेंट ने बताया कि मेरा जो स्किन है वो पूरी इसकी झुर्रियों से भर गई है, पूरा मेरी स्किन लटक रही है, पूरा इसमें वीकनेस इतनी ज्यादा आ रही है। मेरे नाखून, उसने ऐसे करके दिखाया कि मेरे नाखून पीले पड़ गए हैं। और मैं डरता हूँ, पेशेंट जब भी मेरे को कोई मेरा कुलीग मिलता है या कोई गांव वाला मिलता है तो बोलता है तेरे को क्या हो गया, तो मैं घबरा के, मैं उसको का ना तो नाखून सामने करता हूँ, तेरे तो नाखून ही पीले पड़ गए हैं, क्या हो गया तेरे को, इतना कमजोर हो गया है। सर, मैं जाता ही नहीं उनके पास, मैं उधर से दूर से ही निकल जाता हूँ कि वो आदमी मेरे को फिर वो दिखाएगा, मेरी अंदर की पोजीशन को याद करवा देता है। तो मैं वहां पर जाता ही नहीं था। तो ये पोजीशन उस आदमी की थी। उसने बोला कि सर, मैं अपना पूरा काम काज छोड़ ही रखा है, मैं बच्चे बाहर रहते हैं तो मैं कोई काम नहीं कर सकता, मेरा शरीर इतना कमजोर महसूस हो रहा है, तो कुछ भी काम मेरे से नहीं हो रहा। ये बातें मैंने सुनी और मैंने उसको मेडिसिन दी। मेडिसिन देने के बाद मैंने उसको 15 दिन के 10 दिन के बाद में बुलाया। तो उसने मेरे को बोला कि सर, मैं कुछ अच्छा फील कर रहा हूँ। और उसने एक बात बताई थी कि सर, मेरा जो नाक है वो परमानेंट गीला रह रहा है, ये मेरे को बहुत तंग करता है ये बात। इसका गीलापन, बहुत लगातार गीला रहना, कंटिन्यूस गीला रहना, वो तंग करता है। कमजोरी बहुत लग रही है, कोई मैं काम नहीं कर सकता। तो ये सिम्टम्स मैंने लिए और मैंने उनको मेडिसिन दी। 15 दिन 10 दिन के बाद पेशेंट ने आके अपनी कंडीशन के बारे में कुछ मेरे को बताया कि मेरी कंडीशन में सुधार आना शुरू हो गया है। जो सिर का भारीपन पहले मुझे महसूस होता था वो भी कम होना शुरू हो गया है। तो अभी बीपी में डॉक्टर साहब कोई खास कमी नहीं आई, मैं चेक करता रहता हूँ, वो उसमें कुछ कमी नहीं आई। लेकिन मैंने शुगर तो अभी चेक ही नहीं किया, मैं डरते ही रहता हूँ कि चेक करने से कहीं कुछ बड़ा हुए ना आ जाए, तो मैं इसको चेक नहीं करता। तो अब पेशेंट को 3 महीने से ज्यादा मेरे पास हो गए हैं। इन बिटवीन जब भी पेशेंट आता था तो बताता था कि मुझे काफी इम्प्रूवमेंट है, काफी इम्प्रूवमेंट है। लेकिन ये परसों की बात है, वो पेशेंट मेरे पास आया कि उसका शुगर लेवल टोटली नॉर्मल आया है, 98 है फास्टिंग में। और जो बीपी है वो 120/80 है। पेशेंट ने बोला कि वो अपनी खुशी से अपनी फोटो मेरे को देख कर गया है कि सर देखिए, ये कमाल आपकी दवाई ने किया है कि पहले में ऐसा मुरझाया हुआ, इतना झुर्रियों वाला चेहरा था, यहाँ से लटक गया था। उसने हाथ लगा के बोला बार बार कि सर, यहाँ से ऐसे ऐसे झुर्रियां पड़ रही थी, वो आज देखिए, आज मेरा चेहरा बहुत अच्छा फील हो रहा है। और उसने एक खास बात मेरे को बताई कि सर, मैं कम से कम 35 साल से अफीम को यूज कर रहा हूँ, तो उसको भी सर मैं छोड़ना चाहता हूँ। पहले क्या था, मैं वो खा भी लेता था तो भी मेरे शरीर में ताकत नहीं रहती थी। अब मैं खा भी लेता हूँ तो फिर भी मेरा शरीर बहुत अच्छा है। और यहाँ पर लिखा मैंने, अब मैं 4-4 घंटे लगातार गुड्डी करता रहता हूँ, प्लांट्स को, मतलब उसको गुड्डी करता रहता हूँ। तो 4-4 घंटे मैं काम करता हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। पहले मेरे को बहुत चक्कर आते थे, इतनी घबराहट हो जाती थी, मैं काम करता ही नहीं था, मैंने काम बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अब तो डॉक्टर साहब, मैं 4-5 घंटे लगातार काम करता हूँ और मेरे जो नाखून थे पहले इतने पीले थे,
मैं किसी को शो भी नहीं करता था। अब मेरे नाखून के ऊपर ये रेडनेस आ गई है, पर शो मैं अब भी नहीं करता। ये कुछ उसके सिम्टोमेटिक सिम्टोमोलॉजी है उस पेशेंट की। तो पहले से ये लाल हो गए हैं, और मैं कम से कम 5 किलोमीटर डेली शेयर करता हूँ। पहले मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये शेयर कर पा रहा। तो मैंने उसको जो मेडिसिन दी, कोई उसकी पोटेंसी नहीं चेंज की। अभी उसको साइक्लिक पे रखा हुआ है, लेकिन पेशेंट 100% ओके फील कर रहा है। तो मैं आपके साथ, अभी वक्त कम है, एक दो केस और मैंने डिस्कस करने हैं। अगर आप चाहो तो कुछ अपने इनपुट्स देने चाहते हो तो मेरे को बताइए कि क्या हो सकता है। So delusion, withered body is, withering body is. हाँ, ओके ओके। अब पेशेंट ने बोला कि अब मेरी चमड़ी कस गई है, चमड़ी अच्छी हो गई है, पहले ये लटक रही थी। एंड फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज, कि उसको डर लगता है कि बीपी से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए चेक ही नहीं करते हैं, चेक करने से। हाँ, बस वो प्रॉब्लम नहीं, वो देखना नहीं चाहता। बस उसको यही लगता है कि बस इसको देखूं ही नहीं मैं। ओके। जी। हाँ, चलो मैं बताता हूँ, अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास। बाकी सर भी हमारे साथ हैं, एक आध केस और करेंगे। मैंने इसको सुपरस्टिशियस, पहले उसका सिम्टम मैंने लिया कि डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि अफीम को एकदम छोड़ना नहीं, इसका कोई नुकसान पड़ जाता है, इसलिए मैं तो छोड़ता ही नहीं, मैं आपके पास आया हूँ। ये सिम्टम था सुपरस्टिशियस। ये लोग कहते हैं कि अफीम को एकदम छोड़ना नहीं। अफीम जो खाते हैं लोग, नशा होता है, ओपियम, को एकदम छोड़ना नहीं है, और कोई भी नुकसान हो सकता है। ये सुपरस्टिशियस मैंने इसको लिया। और दूसरा सिम्टम, वो जब भी फीम खाता था ना, वो थोड़ा सा छुप छुप के खाता था। वो सोचता था कि किसी को पता ना चले। वो अपनी, जैसे नाखून उसके पीले थे, वो भी एकदम पीछे करके रखता था कि किसी को पता ही ना चले। ऐसे लोग बार बार कहते रहते हैं। तो मैंने उसको हाइडिंग हिमसेल्फ में लिया। वो अपने आप को वो हाइड करता रहता था उस चीज से। दूसरा, कि मेरी चमड़ी लटक सी गई है, इसमें ना वो टोन नहीं रही है पहले वाली। पहले तो सर में बहुत, उसने मेरे को सबसे पहले वाली फोटो भी दिखाई थी, उसमें तो बहुत ही अच्छा था वो। अब उतना तो नहीं हुआ, लेकिन पहले से 90% बेटर उसका चेहरा जैसे पहले था वो वैसे हो गया। उसको मैंने डिल्यूजन पुअर में लिया, सिंपली कि मेरी चमड़ी में वो पावर नहीं रही, वो ऐसे लटकी लटकी सी लग रही है, मैं वीक फील कर रहा हूँ, मेरे में वो हिम्मत नहीं है काम करने की, डिल्यूजन पुअर। और लगातार शरीर में तकलीफ में महसूस करता रहता हूँ, मैं काम ही नहीं कर सकता, शरीर थकावट बनी रहती है, और शरीर में पूरी दर्दें होती रहती हैं, और मेरा सिर दर्द काफी बना रहता है। मैंने इसको डिल्यूजन इंजर्ड में लिया। बड़ी सिंपल सी भाषा, बड़ी सिंपल से रूब्रिक जो सर ने हमें बताए कि इनसे हम कितने कितने बड़े काम कर सकते हैं। जो डॉक्टर के पास वो जाता था, डॉक्टर के पास जाते ही उसका बीपी एकदम रेस हो जाता था। को पता नहीं डॉक्टर क्या बोल देगा, क्या बता देगा। मैंने इसको फ्राइटन इजीली में लिया। जो सामने बीपी वो भी चेक करता था, वो लाइट शन है उसका, तो डरता था वो कि मुझे पता नहीं, मेरे को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का। तो मैंने उसको स्ट्रामोनियम 30 दिया था। वो आज भी स्ट्रामोनियम 30 का इफेक्ट, वही 3 महीने के बाद पेशेंट 100% नॉर्मल फील कर रहा है, और उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रामोनियम 30 का ये इतना जो रिजल्ट मैं आपके सामने बता रहा हूँ, वो विद इन 3 मंथ्स पूरा मेरे सामने आया रिजल्ट। ये फर्स्ट केस जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, ये था। तो ऐसा ही, ये बहुत ही पुराना केस है, कम से कम 25 साल से भी 30 साल से तो वो इसको, अफीम को यूज कर रहा है। और पेशेंट ने परसों बोला कि सर, मैंने अपने आप ही इसको कुछ कम करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि आपका दवाई चलते चलते तो मैं इसको बिल्कुल नीचे कर दूंगा, मैं छोड़ ही दूंगा।
अब लगता है कि मुझे इसकी इतनी जरूरत नहीं है। ये उसके पेशेंट के कमेंट्स थे। इसके बारे में कोई डॉक्टर्स कुछ साहबान कुछ बात करना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट केस शुरू करते हैं। आज हम छोटे छोटे दो ही केस शुरू करेंगे। हमारा टाइम कितने बजे तक का है डॉक्टर लियाकत जी? सर आप 7 जब बजे तक तक लेना तो? चाहें, आप जब तक लेना हाँ, चाहें। नहीं नहीं, हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं, हमारे टीचर साहबान हैं, उनको सुनेंगे। मैं एक केस और सर के साथ डिस्कस करूंगा, उसके जी बाद फिर मैं गुरुजी की इजाजत लेंगे हम। जी तो एक पेशेंट मेरे पास ये आया। ये आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, इनकी 65 की एज है। और ये बहुत देर से इनको तकलीफ हो रही है। इनको पेट में इतना टाइटनेस, इतना बड़ा पेट था उनका, जब मेरे पास आके दिखाया बहुत बड़ा बड़ा पेट लग रहा था इनको। इन्होंने मेरे को बोला कि सर मैं बहुत दुखी आदमी हूं, मैं बहुत दुख में हूँ, मैं तंग आ गया हूँ इस बात से। कम से कम 20 साल से मैंने खाना भी प्रॉपर नहीं खा के देखा, मैं हल्की सी कोई चीज मुंह में डाल लेता हूँ, मेरा पेट फटने को हो जाता है। इतना टाइट, इतना फटना फटने को लगता है, इतना बंद बंद हो गया है बिल्कुल ही। ना हवा ऊपर जाती है ना हवा नीचे आती है। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ सर। इस चीज ने तो मेरे को, मेरे काम से मेरा काम भी छुड़वा लिया इस चीज ने। इसकी वजह से मैं अपने काम पे भी नहीं जाता। ये इतना रास्ते का, मेरी रास्ते की रुकावट बन गया है ये चीज। खाना खाने के बाद तो और भी घबराहट शुरू हो जाती है, मन करता है सर बस मर ही जाऊं किसी में। ऐसे तो इतनी घबराहट होती है ना, तो मर ही जाऊं। कई बार तो ऐसा होता है, रात को भी लगता है कि मैं तो अपने आप को खत्म कर लूं बस। बस थोड़ा मन घबरा जाता है, लेकिन मन में आता है कि अपने आप को खत्म ही कर लूं। डॉक्टर साहब मैंने बहुत दवाइयां खाई, मैंने होम्योपैथी भी बहुत खाई है, मैंने आयुर्वेद की भी, मैंने खुद अपनी दवाइयां बहुत ली हैं, मैंने एलोपैथी भी बहुत खाई, पर सभी दवाइयों ने मुझे बर्बाद ही किया है। मैं किसी दवाई से भी बेटर नहीं हुआ। मैं आज फिर, मैंने सुना था कि आपने एक पेशेंट ऐसा कुछ ठीक किया है, तो मेरे बेटे ने मेरे को बताया था, तो वो मेरे को आपके पास लेकर आए। तो काइंडली मेरे लिए कुछ करें। तो मैंने उसके ये सिंपल जो वर्ड्स, सिंपल भाषा, उसको सुना। सुनने के बाद उसको मैंने मेडिसिन दी। तो उस मेडिसिन के बाद उसका जो, एक हफ्ते के बाद में पेशेंट को बुलाया, उसने बोला कि थोड़ा सा मेरे को रिलीफ महसूस हो रहा है। तो नेक्स्ट मैंने साइक्लेक दे के उसको भेजा। और फिर एक हफ्ते के बाद में बुलाया कि बोला डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, बस एक आध दिन आपकी दवाई से कुछ ठीक रहा, उसके बाद तो फिर वही हाल है। सर मैं मर रहा हूँ, बहुत बुरी हालत है मेरी, मैं बहुत तंग हूँ डॉक्टर साहब प्लीज। ये चीज ने तो मेरी जिंदगी दुभर कर दी है। ना मैं खा सकता हूँ, ना मैं पी सकता हूँ, ना मैं शेयर कर सकता हूँ, ना मैं अपनी शॉप के ऊपर काम कर सकता हूँ। तो मैं बहुत दुखी हूँ सर, कोई ऐसी मेडिसिन दीजिए। तो वो मेडिसिन मैंने चेंज कर दी, वो मेरी गलत प्रेस्क्रिप्शन थी, तो मैंने उसको चेंज किया। मैंने फिर से यही सिम्टम को रिवाइव किया और उसको मेडिसिन दी। उनको फिर एक हफ्ते में बुलाया गया। एक हफ्ते में आते ही उसने बोला, हाँ सर अब कुछ आपकी दवाई ने यहाँ से ढीला किया है पेट को थोड़ा, उसके ढीलापन आ गया है, मेरे को थोड़ा सा राहत महसूस हो रही है, और मेरे को डकार आना शुरू हो गया है। तो मेरे को पहले बरसों से भी कभी डकार नहीं आता था। और थोड़ी सी हवा भी पास होनी शुरू की है, फ्लेक्टस पासिंग को हवा पास होने शुरू बोलते थे वो। तो अच्छा लग रहा है मेरे को। उसके बाद 20 दिन की साइक्लिक देने के बाद में मैं फिर उसको बुलाया। फिर उसी पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं तो खाना भी खा रहा हूँ तब भी पेट में इतना भारीपन नहीं आ रहा। ये उसके कमेंट्स थे। और उसको फिर महीने के बाद में, 1 महीने के बाद में पेशेंट को मैंने बुलाया।
तो उस पेशेंट ने मेरे को बोला कि थैंक्स डॉक्टर साहब, मैंने कभी सोचा नहीं था कि होम्योपैथी मैंने पहले भी बहुत खाई है, लेकिन ये आपने ऐसी कैसी दवाई मेरे को दी जिसकी वजह से मैं पूर्ण ठीक महसूस कर रहा हूँ। मैंने तो अभी कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ये तो बीमारी मेरे साथ ही जाएगी, मैं तो ऐसा ही सोच रहा था। तो उस पेशेंट को अभी साइक्लेक दी हुई है, लेकिन पेशेंट को कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं लग रही। पेशेंट 100% ओके महसूस कर रहा है। तो अगर कोई भी रूब्रिक्स आप मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे तो, नहीं तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सर हमारे साथ हैं तो आपको रूब्रिक शेयर करूंगा। पेशेंट ने सबसे पहले बोला कि मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, इस चीज से मैं बहुत तंग आ गया हूँ। मैंने उसको टॉर्मेंटेड में लिया, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही। और इसने तो मुझे इतना बांध के रख लिया है, मेरे लिए ये एक रोड़ा बन गई है, एक अड़िक्का बन गई है ये चीज। ना मैं कभी काम कर सकता हूँ, ना मैं चल फिर सकता हूँ, ना मैं अपने काम पे जा सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डिल्यूजन हिंडर्ड ही। और डॉक्टर साहब इतना बदकिस्मत हूं ना, कोई मेडिसिन काम ही नहीं करती मेरे ऊपर। मैं जो भी दवाई लेता हूँ वही दवाई मेरे को खराब कर जाती है। अनफॉर्चुनेट। खाने के बाद इतनी घबराहट हो जाती है, थोड़ा सा भी मुंह में डाल लेता हूँ बहुत ही घबराहट होनी शुरू हो जाती है। एंग्जाइटी ईटिंग आफ्टर। बस सर कभी जब बेबस हो जाता हूँ ना, इतना दुखी हो जाता हूँ, तो लगता है बस अपने आप को खत्म कर। एंग्जाइटी सुसाइडल डिस्पोजिशन विद। और रात को भी कभी इतना दुखी हो जाता हूँ ना, तो लगता है मैं बस अपने आप को खत्म ही कर लूं। बस मन इतना मानता नहीं है, लेकिन अंदर से आता है कि मैं खत्म ही कर लूं। डॉक्टर साहब सब दवाइयों ने मेरे को तो बर्बाद ही किया है। मैंने होम्योपैथी ली, एलोपैथी ली, आयुर्वेद की ली, सब ने मेरी तो पट्टी मेज कर दी है। जी, पंजाबी में हिंदी में ऐसा बोलते हैं, सभी दवाइयों ने मुझे खराब कर दिया है। ये मैंने लिया डिल्यूजन रॉन्ग सफर ही हैज, बैट जम्प्स आउट ऑफ wants to try destroy himself but lacks courage। ये कुछ सिम्टम मैंने उस पेशेंट के लिए, और ये रूब्रिक्स मैंने पेशेंट के लिए, मैंने उसको चाइना 30 पे रखा हुआ है। आज 5 महीने हो गए हैं उस पेशेंट को चाइना 30 दिए हुए, और पेशेंट 100% बेटर फील कर रहा है। तो ये कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस जो थोड़ा बहुत मैं सीख पाया सैगल सिस्टम को, माइंड टेक्निक को, मैंने आपके साथ शेयर किया। ये उतना ही नहीं, सैगल सिस्टम ये पूरा नहीं है, ये तो बहुत कुछ जो मैं सीख पाया हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक्स एवरीवन। आज के लिए इतना ही। अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथ हमारे गुरु जी, हमारे टीचर साहबान सर संगीत सैगल सर हमारे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच मथारू सर, इट्स बिन फैंटास्टिक। बहुत इतनी मतलब अगर हम कहीं और सेमिनार्स में जाते हैं तो इन्हीं दो केस पर पूरा एक दिन चला गया होता है सर। वो इतनी स्लाइडें दिखाते, इतने रिपोर्ट्स दिखाते, इतना वो सारा अडू करते, और फिर ला जाकर के दवाई पर आते हैं और बताते हैं कि देखो कि स्टेमोनियम रेमेडी दैट वी बीन यूजिंग ओनली फॉर फियर हैज क्योर्ड डायबिटीज एंड दिस और दैट। यही खासियत है सर, हमको जो हम्बलनेस, जो हमको सबसे बड़ी चीज जो हमको सैगल सर से सीखने मिली है, और जो हम लोग सभी लोग कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई साहब, हम हमारे छोटे बच्चे भी इंशाल्लाह यही करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और इसके बाद मैं सैगल सर से विनती करूंगा कि सर आप भी कृपया आज बोले सर। और जब भी आप बोलते हैं तो ज्ञान की बातें बोलते हैं सर, तो मैं आपको बाकी कुछ नहीं नहीं, कहूँगा। अब मेरी उम्र हो गई है ज्ञान की बात करने की, ज्ञान तो निकल गया अब। चलिए, गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर, गुड सैल्यूट इवनिंग सर। टू एवरीवन है। डॉक्टर गुड मठारू, इवनिंग। दैट वाज नमस्कार गोइंग सर। वंडरफुली फाइन। और लियाकत, मैं एक बड़ी अजीब सी बात कहने वाला था, मुझे लगा तीसरी जनरेशन ले आए तुम मेरे लिए। दिस इज द थर्ड जनरेशन आई एम विद।
इनको क्या कहूँ, पोता कहूँ, पोतियां कहूँ, राइट? दिस इज द थर्ड जनरेशन, ग्रैंड चिल्ड्रन आर देयर, राइट? Sir. और मुझे लगा बड़ी अजीब सी बात हो रही थी, लोग बड़े इनसिक्योर फील करते थे मेरी एज पे आकर, तो मुझे हंसी आई कि जब ये बच्चे हैं, व्हेन दीज चिल्ड्रन आर देयर, अगर मेरा पोता लौटता है और मुझे एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाता है, कितना मजा आता है। मैं उसको फिर सुनता हूँ, यार तू फिर सुना, मजा आ रहा है ना? यू नो दैट 3 साल का बच्चा कहता है, दादू यू नो दैट टुडे आई सॉ एन एली। मैंने कहा ये अली कौन है यार, मेरी समझ में नहीं आया, व्हाट इज दिस एली? तो वो अपने बाप को बुलाता है भाई कि दादू डजंट नो एली। मैंने कहा यार ये है ना, तो बोला लुक दादू ही हैज अ बिग ears and he's the biggest animal। और मैंने कहा यार उसको तो हम एलिफेंट कहते हैं। बोला लुक, ओहो, वी कॉल इट एली। अब बताइए, एक बच्चा मुझे सिखा रहा है जो मुझसे तीसरी जनरेशन का है। सो आई लव देम, जो तुमने इनको तैयार किया है अपने अपने। और ये ऐसे ही करेंगे ना, गलतियां भी करेंगे, एली कहेंगे वहीं तक, जो दिखेगा लगेगा आज हाथी दिखा तो हाथ सब नाच पड़ेंगे ये लोग, कमाल हो गया, राइट? सो दिस इज देयर राइट टू बी एक्साइटेड अबाउट व्हाट दे अचीव, एंड आई ब्लेस देम। कोई बेटा कंपटीशन किससे नहीं है, आई एम जस्ट एंजॉइंग एवरीवन। मठाड़ू बोलता है मैं उसका आनंद लेता हूँ, आप बोलते हो मैं उसका मस्ती लेता हूँ, है ना? अब आप बताते हो यार ब्राइटा सर तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अब पेशेंट तो मस्ती में आ जाता है। राजा, नमस्ते, ठगना नहीं से, आज दावत पे तुमने, दावत पे चलते हैं, दावत है आपको, मैं न्योता नहीं दिया। मैं तो न्योता दिया, मैं आ रहा हूँ, आपको पाऊंगा। अब बताइए क्या करोगे यार, बच्चा है, बोल गया अपनी कहानी में सारी, अब ये सारे सिम्टम मिल जाएंगे, कितनी मस्ती से वो बोल गया, आवाज भी नेजल है। एक याद रखिएगा आवाज को, टोन को। हाँ नमस्ते, नमस्ते दादा, कैसे हैं भाई साहब? नहीं, अभी केस की प्रेजेंटेशन है, तो मैं इन बच्चों से शेयर करूंगा कि व्हाट वाज द डॉक्टर सहगल्स कंट्रीब्यूशन। आई बीन टू कैलकाटा फॉर अ बिग, it was a big seminar, 2000 plus people, they thought they will be there, और सब पीजी के स्कॉलर्स थे, एंड वी बीन कॉल कितने टीचर्स, और 15 मिनट का स्लॉट। डॉक्टर लियाकत बताइए क्या करूंगा मैं, जब तक वो पिछली वाली बेचारी परिनाज अपना उठाती, मैं अपना बजा बजा लगाता, तब तक 5-7 मिनट तो वो निकल गए कि वो प्लग आउट करेंगी, मैं प्लग इन करूंगा। अब उस उतनी बड़ी लाइट में मेरा वो चलेगा नहीं। अच्छा, आई हैड नो असिस्टेंट, तो मैंने बोला छोड़ो भाई इसको, आप इससे अच्छा तो उसी को दे देते, लेट परिनाज कंप्लीट हर केस, राइट? तो मैं कहा चलो मैं आपको क्या कहूँ, मैं इन बच्चों को समझाता हूँ डॉक्टर सहगल की जर्नी क्या थी। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं ऐसे ही बैठ गया स्टेज पे आगे उतर के, आप जानते ही मुझे मैं क्या करता हूँ। आई जस्ट सेड कि यार एक पेशेंट आया, उसका केस कम, मैंने बात की थी, परी से बात की थी आपकी भाई, दूसरी मानसी पाटिल और परी मानसी है ना, उसको मैंने बताया था भाई। तो मैं वहां बैठ गया, मैंने बोला अभी 12-15 मिनट में तो मैं आपको, आई कांट बी रियली, मैं कुछ नहीं कर सकता। सो लेट्स सी आई कैन डू। पेशेंट वापस लौटता है डॉक्टर सहगल के पास और पूछता है, सर वो नींबू पानी पी लूं, लेमोनेट्स में लिम्का थोड़ा सा ले लिया करूं, ले लूं? डॉक्टर साहब, अब आप ऐसे, अगर ये सवाल आपका पेशेंट आपकी दवाई ले जाने के बाद बाहर से वापस लौटता है और पूछता है, कितना तवज्जो हम देते थे या कितना सोचते हैं, इसकी क्या वैल्यू होगी? क्योंकि अब तो आप लोग सोचना शुरू हो गए डॉक्टर सहगल सिस्टम को, आपको लगा पेशेंट जो कह रहा है इसकी सेम है, कुछ ना कुछ तो ताकत होगी। क्या सोचेंगे बेटा? कुछ बड़े सारे बच्चे हैं, कोई सोनी मुझे याद आता है, बड़ा एक्साइटेड होता है जब चल रहा होता है आपका सेमिनार। इस एक इंफॉर्मेशन मांग रहा है वापस लौट के पेशेंट, जो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, राइट? कि क्या मैं नींबू पानी पी सकता हूँ या सर लिम्का ले लूँ थोड़ा, लेमोनाइड, बस। तो हाउ यू टेक दिस इंफॉर्मेशन, और क्या करेंगे इसका, और कोई तवज्जो देंगे? अब तो मैंने कहा शायद आप इस पे वैल्यू भी दें। What will you do with this information? A piece of small information, a patient seeking from you. At the very end, when he left,
clinic and came back and asked you for it. जी मानसी बेटा कुछ खोल दो, सोचो क्या करते हैं ये लोग। जी सर। हाँ बेटा, फिर इसलिए क्योंकि उसको तो बता दिया था, परी को तो तेरे को बताया नहीं था मैंने। समझ, इसकी कोई वैल्यू करते बेटा, मुझे नहीं पता था हम लोग कितनी वैल्यू करते। समय कम है, आप लोगों का वापस क्लिनिक जाने का समय हो जाएगा, बीच बीच में लोग जाएंगे। इसको क्या करेंगे बेटा आप? और डॉक्टर सहगल ने इसको क्या किया, इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जो उनके पास आई, ही जस्ट लुक्ड एट द पेशेंट। उसको लगा यार कोई गलती। बोला सर वो एक कान पकड़ा, सर अगर आप कहोगे तो मैं नहीं लूंगा। डॉक्टर सहगल ने फिर भी बड़े रुके। दैट वाज हिज वे ऑफ वर्किंग, तरीका बेटा बता रहा हूँ मैं। दैट वाज, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज यूजलेस नहीं है। तो उन्होंने बोला भी मैंने तो तुझे कुछ कहा नहीं बेटा, भाई तू खा ना खा, ले ना ले। नहीं, बोला सर पता नहीं ना, मेरे को लगा पता नहीं होम्योपैथी में लोग कहते हैं प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, तो मुझे लगा मैं तो ले रहा था कुछ दिन से, हफ्ते 15 दिन से ही है। अब आपको केस पे लेके चलते हैं। अब क्योंकि ये तो केस के बाद की बात है, एक इंफॉर्मेशन पेशेंट ने मांगी, उससे पहले क्या घटना घटी। वो आया, उसने बोला सर मेरी ये रिपोर्ट्स है, और मैंने तो ऐसी वाइफ के साथ गया था, शी बीन फॉर अ गायनी चेकअप, और वहां उन्होंने कहा रूटीन में अंदर अभी उनका अल्ट्रासाउंड होना, कुछ चीजें होनी है, तो चल रहा था। और मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अपना बैठा था, टाइम आधा पौना घंटा पास करना था बाहर वेटिंग में। आई जस्ट आस्क्ड, तो ऐसे ही देख थोड़ा 10-15 मिनट वेट की। थोड़ा मैं जब हुआ, मैंने ऐसे ही बुला लिया किसी बच्चे को, मैं कहा यार एक मेरा भी ब्लड चेक कर लो, मेरी भी निकाल दो रिपोर्ट, कुछ देखते हैं। वैसे तो कुछ नहीं है, ठीक ठाक हूँ, बड़े मैं तो कभी कराया नहीं चेक, करा लो। अब जब निकाला तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ी हुई है, लिवर फैटी आ रहा है, और भी कुछ चेंजेस थे। तो उसे लगा मामला तो कुछ थोड़ा सा दिक्कत है, और उसको लगा मुझे है तो कुछ भी नहीं। अब निकल आया, और वो रिपोर्ट चुपचाप उसने उनसे ली जब तक वाइफ बाहर आए। राइट, वो जब उसको कहा कि मुझे भेज देना ये रिपोर्ट्स, लेके डॉक्टर सहगल के पास आया है। मतलब उस दिन तो मिली नहीं थी, बाद में आई थी। तो बोला जी सर इसका होम्योपैथी में कुछ फैटी लिवर है, और थोड़ा सा ये मेरे और चेंजेस आए हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है। जब पता चला था तो मैंने, किसी ने बताया कि थोड़ा वॉक शुरू कर दो, और सुबह नींबू पानी पी लिया करो, नींबू डाल के, उससे थोड़ा अच्छा हो जाता है। दिस वॉज हिज इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल अराउंड, जिनसे मिलता मिलता था, तो उसने शुरू कर दिया। तो पहले आते ही डॉक्टर सहगल से वो ये बोला था कि भाई ये सर मैं रिपोर्ट लाया हूँ, तो इसे आप वाइफ को मेरी मत बताना, मैं इनसे चुप के आया हूँ उससे। बोले जी मैं आप सोचिए प्रॉप डीलिंग का काम करता हूँ, और भी 2-4 बिजनेसेस हैं, लेट वेट हो जाते हैं, संगत हमारी कुछ ऐसी है, खाने पीने का शौक है। अब वो तो सर आपको पता है ना, वो बैठ जाएगी, और फिर मेरा आना जाना बाहर, कब जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो सब रोक टाक लगा देगी। मैं तो इतना ध्यान व्यान देता नहीं सर, ना मुझे ध्यान रहता है। और इसीलिए मैंने वो नींबू पानी शुरू किया था कि चलो उससे कुछ वेट भी कम हो जाएगा, और सर मुझे फर्क भी अच्छा भी लग रहा था। और सच बताऊं सर, वो जब कभी खाना वाना खाने के बाद जो पहले बोझ बोझ लगता था, वो थोड़ा हल्का लगता है अगर मैं नींबू पानी ले लेता हूँ। तो डॉक्टर साइकिल ने फिर पूछा भी तेरा मन कर रहा है या तुझे वो फर्क पड़ रहा है, या कहता सर लोगों ने कहा था तो मैंने स्टार्ट कर दिया, उससे थोड़ा फर्क लगा, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं दे रहा हूँ, आप कहोगे बंद कर दूंगा। जी, अब इसमें क्या खबर आई है आपके पास प्लीज, है ना कुछ बेटा? बड़े सारे बच्चे हैं, बड़ी मेहनत इन्होंने की है, एंड दे आर डूइंग वंडरफुली वेल, आई एम हैप्पी टू सी थिंग्स ग्रोइंग। है ना, जो छोटा सा पेड़ लगाया था उसके तो फल कितने फैल गए, है ना। और एकलव्य कह रहा है मैंने तो कमाल कर दिया है, जंगल में आग लगा दी है। ठीक है, चलिए, सो लेट्स सी, कुछ चीजें स्पार्क कर रही हैं। So two people are saying, there are three doctors who are saying belladonna.
हाँ वो कहेंगे बेलाडोना तो मैं दिखाई है, मुझे आगे चाहिए, बेलाडोना से पहुंच जाएंगे, इससे सुंदर चीज तो मैं दे नहीं सकता था आराम से, मुझे जर्नी चाहिए प्यार से। कौन बोला ये? तीन है चलो सर। खोल शीतल, लाइए। there are three messages who are saying it is belladonna. हाँ बोलो कैसे बेटा, उनसे कहो शाबाश, बहुत बढ़िया बात है। Sheetal, Swati, and Radhika. Any of जी। the three, if any of you, if you are understood एंजाइटी belladonna, वेकिंग please ऑन let बेलाडोना, बड़ी दूर पहुंच गया भाई, कौन है? फरीदा। me know. Yeah. So फरीदा इतनी Farida. दूर नहीं जाना है, डोंट सर गो दैट फार। पेशेंट को उसको जो बाहर खाने का पीने का शौक है, उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, मतलब जी उसको फ्रीडम चाहिए। जी, चलो वेरी गुड। और जो रिपोर्ट्स उसने किए मतलब ऐसे ही किए थे, मतलब कुछ तकलीफ तो नहीं है लेकिन फिर भी किया था, और जब रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आए तब वो थोड़ा सा एंग्शियस हो गया। और उसने आपको लगा वो एंशियस हुआ? नहीं, थोड़ा एंग्शियस अपने आप नहीं डालना बेटा, आपने एंजाइटी जेब से डाल दी, बस वो नहीं करना है। यू नो टू पुट फ्रॉम योर ओन पॉकेट एनीथिंग इन, राइट? आप अपना माइंड थोड़ा बाहर रखेंगे, सीधा वे द, है ना, हाउ, क्या करता है, हाउ ही डज, व्हाट ही सेज एंड हाउ ही सेज, व्हाट ही डज एंड हाउ ही डज, जर्नी हाँ। वो वाली रहनी चाहिए। थोड़ी सी भी स्पेकुलेशन करेंगे तो हम कहीं भी गलती खा सकते हैं, हालांकि क्योंकि निकल आती है दवाइयां इसलिए आसान है। विमल भी बोल रहा था कुछ, किसी ने लाइट मांगा, किसी ने फ्रिवोलस मांगा। मतलब ज्यादातर मुझे वो फ्रीडम उसका अफेक्ट होगा, यही मुझे लगा। हाँ बेटा, अब देखो ना, सब ने ऐसा यही करते हैं, कभी हम इंप्रेशन डालेंगे, ये सब बहुत ठीक कर रहे हो आप, आपको लग रहा है बस ये नहीं करना कि रूब्रिक्स डालने हैं, क्योंकि हमें रूब्रिक्स पता है और हमें जो फील आती है उसके साथ हम उसको अटैच नहीं करेंगे। ओके। आप इस पेशेंट को देखिए, वो वेटिंग रूम में बैठा है, पहले वहां चलो, कहाँ बैठा है? वेटिंग रूम। राइट। और उसको कोई दिक्कत भी नहीं है, तो सबसे पहला फील क्या है? और उसको लगा हाँ। है बाद में भी जब आ गई रिपोर्ट तो उसकी फील अभी तक क्या है? यार मुझे तो ठीक ही लग रहा है। इसको कहाँ डालोगे? सबसे पहले यहां से शुरू होगे, वट अ फील ही कैरीज, डिल्यूजन वेल ही इज, वेल हाँ। सेज नहीं, उसको फील है यार, वर्ड क्या है? अब ये डिफरेंस होगा दो रूब्रिक्स में, डिल्यूजन वेल ही इज एंड वेल सेज इज, राइट? हम्म। इसमें अंतर क्या है? वो कह नहीं रहा है, उसको लग रहा है। डॉक्टर उसको हाँ, बोला यार उसको तुम क्यों लग नहीं रहा है, पेशेंट, अब इसको याद रखना बेटा, एक काम आएगा, एक है। पेशेंट यस। दवाई लेते लेते बीच में गायब हो गया, तो बोले आप क्यों नहीं आए यार, क्या हुआ? सर वो ठीक लग रहा था, मैंने सोचा अब जरूरत नहीं है। लग रहा था, मुझे तो अभी हाँ। भी ठीक लग रहा है, बोलते हैं ना पेशेंट। यस सर। यस। तो इसको क्या लोगे, इसीलिए गलती होती है, जरूरी नहीं कि वो बोलेगा ही हैज नॉट सेड ही इज फाइन, उसको लगा सर मुझे तो ठीक ही लग रहा था। तो ध्यान हाँ। से देखो उसने क्या किया, बैठे बैठे कंधा रखा हुआ उसमें दूसरी टेबल पे, यार आना जरा चेक कर देना, इसको कहाँ डालोगे यस। भाई? आना यार जरा चेक कर देना मेरा भी, इसको कहाँ डालोगे? हेलो, बेलाडोना तुम जानते हो, इसको हाँ। कहाँ डालोगे भाई? एक बार साथ हमारे कुर्सी पे हाथ रखे और यार मेरा भी चेक कर ले, कहाँ डालोगे भाई? यहाँ से एंट्री है, मात एंट्री भी वर्ड गलत बोल रहा हूँ, कोई एंट्री नहीं, फील है, हम्म। इसका करेक्टर है, उसकी प्रेजेंटेशन है। अब आप फ्रिवोलस जानते हो, इससे आगे बढ़ना पारुल, फ्रिवोलस तो एक पार्ट है, अगर पहला गेम है तो पार्ट आएगा ना। इसको लिया मैंने प्लेफुल, मस्ती में, उसने कहा यार मेरा भी देख लो, खेलते हाँ। खेलते। अब प्लेटफॉर्म पर। कितना इजी है बेटा, प्ले से फुल, प्लेफुल क्या होता है, भरा हुआ, अब यार मेरा भी देख लो, यार है ना, एक सीरियस मैटर, बिल्कुल। अब आप सब ले लो, लाफिंग एट सीरियस मैटर, आप फ्रिवोलस ले लो, वो नेक्स्ट पोर्शन है। बट हाउ वाज द एक्ट? वाज अ प्लेफुल एक्ट। लियाकत ठीक चलेगा, समझ आ रही मेरी बात? यस Sir. सर। यस सर। Sir. प्लेफुली ही सेड कम ऑन यार आजा मेरा भी देख ले, राइट? शायद हम इस बात पहली लाइन को भूल जाते। दिस इज द बिगिनिंग। एक स्केच बनाने के लिए मैंने एक शीट लिया और पेन को ड्रॉ किया, तो पहली लाइन आई, ले ले भाई आजा, राइट? मेरा भी ले ले यार, चेक कर ले, राइट? और यही हुआ, सामने फारूक मास्टर बैठे थे, मैंने बोला यार तुम एडिशन कर देते हो और जवाब हमें देने पड़ते हैं माइंड के, ये इतने बड़ा स्टेज के ऊपर मैं खड़े होकर ही बोल रहा, मैंने बोला पाँच बताओ 10 मिनट में पढ़ाऊँ क्या? तो मैं तो डॉक्टर शैल का वो जीनियस दिखाने जा रहा हूँ, और आपके लिए इसकी इन्फॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं थी, इसको बता दो यहाँ बैठे, और बड़े बड़े धुरंधर बैठे थे वहाँ स्टेज पे, कि क्या आप इसकी वैल्यू करते?
उसने पहला क्या काम किया, जैसी रिपोर्ट आई पहला काम तो उसने लोगों से कुछ पूछा पाछा और पानी पीना शुरू कर दिया, नींबू का पानी। 15 दिन बाद जब आया डॉक्टर सहगल से, पहली लाइन बोली, यार मेरी बीवी को मत बताना। अब ये प्रार्थना किस चीज की थी? सो हाइडिंग थिंग्स। अब क्या हुआ, एक रिपोर्ट छुपाई, अपने आप को नहीं छुपा। अभी डॉक्टर मठाडू ने रूब्रिक दिया था आपको, हाइडिंग, है ना। इसके अब इसने क्या था, इसने क्या स्टार्ट किया सबसे पहले, हाइडिंग थिंग्स। और क्यों छुपा रहा, बीबीसी क्यों छुपानी है? अब ये रूब्रिक की जान आई। रूब्रिक आपने शायद सुना होगा, डिल्यूजन, डॉक्टर मान साहब जब डॉक्टर सहगल ने लगाया था, दोनों में पढ़ा था, ना कोई पूछता था, ना इस वैल्यू, इस रूब्रिक की कोई वैल्यू थी। डिल्यूजन, फिजिशियन इज ए पुलिसमैन। और कैंट साहब से आया हुआ रूब्रिक है। मैंने वहीं पूछा स्टेज पे भी, कितने लोगों ने इसको वैल्यू भी की थी, और क्या आपके पास कोई आएगा कि सर मुझे दवा दीजिए, मेरा दिमाग थोड़ा हिल गया है और मुझे तो हर डॉक्टर जो है पुलिसमैन नजर आता है? कहेगा भी कोई? नहीं नो नहीं। नो तो अब इसमें दो वर्ड आए, पुलिसमैन और फिजिशियन, राइट। यस। पत्नी कैसे फिजिशियन बन गई स्वाति? फिजिशियन मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल उसका अभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो वो उसको रोक टोक करेगी, मतलब उसको लगता हाँ, है। आराम से समझना बेटा इस बात। सो हु इज फिजिशियन? हु टेक्स केयर ऑफ योर हेल्थ। वो हाँ। रिस्पॉन्सिबल होता है आपको कुछ दवा देने का, आपकी हेल्थ देने का, आपको मेंटेन करने का, राइट। और पुलिसमैन होता है जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए बाध्य करता है, इट फोर्सेस यू टू, है ना, ही फोर्सेस यू टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर मैंडेटरी एंड पुट्स यू अ फाइन, है ना, इफ यू डिसोबे देम, राइट। यस। अब समझ में आ गई? तो उसको क्या लगा, यस। सर ये तो डंडा लेके बैठ जाएगी। अक्सर आप पाएंगी पत्नियां क्या कहती हैं आके, कि डॉक्टर साहब अब आप ऐसा, इनके आप इन पे छोड़ो, मैं ही करूंगी कुछ, मैं ही करूंगी कुछ, मैं अब मैं इनका कंट्रोल करूंगी, सर इन्होंने तो मानना नहीं है, ये तो खाएंगे, आई टेक। तो जो वो चार्ज लेती है, टेक ओवर करती है, उसको कंडक्ट करती है। सुबह उठ के डायबिटिक है तो करेले का जूस पिलाएगी, खाने लगेगा तो कप उठा के ले जाएगी। समझ रहे हैं आप? So now she behaves like this. And this was a useless information lying in the mind section, which was never ever touched, जो डॉक्टर मान ने कहा। ये डेड रूब्रिक्स की तरह पड़े थे। इन सब रूब्रिक्स में आत्मा है बेटा। अगर आप एक म्यूजिशियन है, आप देखिए आपके पास 7 ही सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। और एक बच्चे को बांसुरी पकड़ा देते हैं, जो बेचने वाला है वो पता नहीं कैसे उसमें से सब सुर निकाल लेता है, और आप उससे पूछते हैं यार तू सारे गाने गा लेता है? अच्छा ये पता है ऊपर वाले में हवा ज्यादा मारता है, नीचे में डालता है, कौन सा दम बंद करता है, कौन सा खोलता है? बोला मुझे कुछ नहीं आता भाई, मुझे तो ये पता है, मेरे गुरु ने सिखाया है मुझे इसमें हवा मारनी है, एंड आई जस्ट डू दैट, आई जस्ट ब्लो द एयर इन, इट गिव्स यू अ साउंड, वो म्यूजिक बन जाता है। आप भूल गए कि आपकी सारी प्रूविंग हेल्दी बींग्स पे हुई थी। सो दे आर नॉट डेड इंफॉर्मेशन, दे आर अलाइव। इन सब में आत्मा बसती है बेटा, राइट मानसी? अभी आगे चलेंगे, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है, राइट। अब आपको दिख रहा है फ्रिवोलस भी है, कैसे लिया उसने लाइफ को। और वो क्या था, किसी ने भी कहा मेरे से, इसलिए पिछले एक सेमिनार मैंने सुना था, आपको बता रहे थे क्रेडुलस और नाइव का डिफरेंस, है ना। एक नौसिखा अभी, है ना, उसकी उसमें अभी तराशा नहीं गया, अभी उसमें एक्सपीरियंस नहीं आया, और बिलीवर। तो उसने क्या कहा आपसे, गुस्से ही क्या कहा, और जो कान पकड़ के चुप खड़ा हो गया, सर अगर आप कहोगे तो छोड़ उसका दूंगा। ये क्या था भाई, उसका जो कान पकड़ा? संबंध जी। आईने वो तो बोले मैंने कुछ कहा ही नहीं। हाउ इजीली ही थॉट दैट इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। उसको लगा जी सुना है, मैंने सोचा पूछ लूं। तो पूछने जो आया था वो लाइट लेने आया था, बिल्कुल ठीक किसी बच्चे ने मांगा कि भाई आप मुझे तो मालूम नहीं भाई, आप बता दो सर कि भाई खाना है कि नहीं खाना। और उससे पहले और आप कहोगे तो सर मैं बंद कर देता हूँ, अभी तो कुछ कहा भी नहीं गया। विदाउट बीइंग टोल्ड नॉट टू डू और डू, उस आदमी ने पहले ही विड्रॉ करने की कोशिश की। तो किसी के कहने पे शुरू हो गया, और आप कहोगे तो बंद कर दूंगा। अभी किसी बच्चे ने डाला था, क्या बना ये? हेलो। किसी ने कहा तो शुरू हो गए नींबू पीना, और सर आपको छोड़ दूंगा। अब याद रहेगा, भूलेगा नहीं। क्रेडुलस मैंने जानबूझ के लिया, पिछले 2 सेमिनार से पहले पढ़ा रहे थे। जी, सॉरी।
Who's there? Who's there? आवाज नहीं आ रही बेटा, पूछो कौन है? No, I think they spoke. She's not in good network. अरे कोई बात नहीं, ठीक है। आगे आगे कुछ सोच सकते हैं? मंजीत सिंह दिखाई दे रहे हैं मुझे। मंजीत सिंह क्या सोच सकते हैं आगे? अब सारा केक दे दिया है मैंने, आज केक का दिन है, अब चेरी चाहिए ऊपर टॉप पे। व्हाट इज चेरी ऑन द टॉप? हाँ बेटा, अगर हम फिजिकल पहले जब टोटलिटी लिया जाए करती थी, तो अगर आप जाएंगे जर्नल और वहां से आप जाएंगे फूड डिजायर एंड अवर्शन, तो अगर आप फॉर्चुनेटली डालेंगे डिजायर फॉर लेमन एंड लेमन्स एमलुरेट, यू विल गेट टू रेमेडीज देयर कॉमन, जर्नली 2 या 3 दवाइयां आएंगी, इनमें एक बेलाडोना है, राइट? उसमें से एक लेकिन वो पोर्शन को हम अगर माइंड के सेक्शन से लेके जाएं तो कैसे ले जाएंगे? मैंने को बोला कि आप पहुंच सकते थे, बट आप लोग कभी भी इस पोर्शन को ना लेते कि डिल्यूजन है ना, फिजिशियन इज अ पुलिसमैन, और अभी जो रूबरिक मैं देने जा रहा हूँ वो काम आएगा। अब मुझे चेरी चाहिए आप लोगों से, और लियाकत इसीलिए शायद मेरा अभी काम बाकी है, मुझे लगता है अभी भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ा सकता हूँ, अभी भी कुछ यूजफुल हो सकता हूँ। बिल्कुल What is सर। that feel Always. which when he was expressing himself? एक तरफ लाइट वो थी, एक तो लाइट मांगने आया और दूसरी लाइट डॉक्टर सहगल ने दी कि नींबू पानी से सर थोड़ा हल्का लगता है, वो सेकंड लाइट थी, राइट? क्या फील होता है उसको, व्हाई ही डज दैट, कि सर वो ले लेता हूँ तो थोड़ा सा 1 टका उसने करके दिखाया कि सर देखो वो लेने के बाद हल्का फील होता है, दैट सूट्स, वो थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इसको कहने से पहले जो उसने कहा था सर गलती तो नहीं कर रहा, वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? वो चेरी है भाई, दे दो यार। अगर कोई बोलता है बेटा तो इसको भाई ले आकर इसको उसको चॉकलेट दे देना, अगर कोई बोला तो, और नहीं तो मुझे भेज देना। Delusion floating in air. सॉरी? Delusion floating in air. नहीं बेटा नहीं। बहुत मनप्रीत बड़े प्यार से, देखो मैंने हल्का सा दांत तले जीभ दबाई, आपसे कान पकड़ के कहा सर अगर गलती है तुम, सर मैं नहीं, सर गलत कर रहा हूँ सर, क्योंकि वो बेचारा चुपचाप, उसको समझ नहीं, वो पूछ रहा है कि यार सुना है कि ये नहीं किया जाता। ये कितना प्यारा सा रूब्रिक है, जाइए टिमिडिटी मानसी निकाल सकती है बेटा रूब्रिक, कोई आप में से एनालिसिस करो, इसको दिखाओ जरा, स्क्रीन पे दिखा सकते। एक टिमिड स्टेट है। टिमिड क्या है? आप जब कॉन्फिडेंट होते हो कैसे घुसते हो कमरे में? हाँ जी। अच्छा टिमिड, वो एक दरवाजा गलती से खोला वापस भाग गए। टिमिडिटी वो है जहाँ थोड़े से यू आर अ बिट शाय, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट 100% श्योर, so you can't present yourself fully on the front, so your appearance will be timid. Timidity rubric खोल सकते हो बेटा कोई? आई जी कैन सर। यू ओपन दिस? प्रणीता। प्रणीत कहाँ गई बेटा? आजा, तेरी बारी आ गई। जी सर, जी सर। सॉरी बेटा, मैंने सब बच्चे पकड़ लिए गलती से, माफी चाहूंगा आप लोगों से। नहीं नहीं, कोई अब मैं एक स्टेप पे ले गया हूँ, अगला स्टेप लाओ। स्क्रीन शेयर करूँ सर? करो ना बेटा, ओके। मुझे हटाओ और स्क्रीन शेयर करो और टिमिट पे ले जाओ। नहीं, आप भी रहोगे, आप देखा देखा कितनी कॉन्फिडेंट बच्चे हैं। सर आपको कहाँ फेंक रहे हैं, आप भी रहोगे। ये बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, ज्यादा ट्रेन कर दिया तुमने इनको बेटा। हाँ सर। टिमिडिटी, हाँ जी सर। टिमिड टिमिडिटी। समझ आ रहा है? अब जाओ, टंग स्मैकिंग द टंग एंड प्रोट्रूड्स इट, ये कहीं से उड़ा के रूब्रिक टंग पे जाइए, बकायदा रूब्रिक मिलेगा आपको। ये कहाँ चला गया रूब्रिक, ढूंढो इसको, निकालो ये। Tongue smacks and protrudes. हाँ, टिमिडिटी, टंग स्मैक्स एंड ये इसमें प्रोट्रूड। बेलाडोना, इसको निकालो, किसी और रेपर्टरी में होगी, खाली एक दवाई है इसमें। कंप्लीट और मध्ये ये फरीद। हाँ, कंप्लीट रिपब्लिक ओपन। ये जीनियस है इसका बेटा। 50 में केसेस दिखा दूंगा जहां सिर्फ इस पे पकड़ा गया पेशेंट। ये चेरी है ऑन द केक। अभी बेलाडोना आप सबको आती है, कभी इस रूब्रिक को आपने कितनी बार ट्राई किया होगा? यस सर। कभी ट्राई किया बेटा? No sir. नहीं सर। बस ये आज टीएटी का तेरा प्रोट्यूड तेरे को कहा था ना कंप्लीट चेरी मध्ये रोक रहा हूँ, परी तेरे को दे नहीं रहा, केस पूरा बता दिया था मैंने। ये रहा प्रोट्रूडिस,
स्मैकिंग tongue and protrudes. अब स्मैकिंग क्या होता है? जान ये तो नहीं ना होता कि टिमिड, अब ये कोई डिलीरियस स्टेट नहीं है, ये कोई है ना, कोई ऐसी दूसरी स्टेट नहीं, एक टिमिडिटी के दौरान अपने जैसे आप देखते हो कोई आदमी आता है और गलती से उड़ता है, खोल ले बेटा, लियाकत खोल ले इसको, बड़ा प्यार से देखना है शक्ल को मेरी, जो होगा घटना। तो एक सी की आवाज आती है, सर सॉरी, डिड आई डिड में दैट वाज रॉन्ग, मुझे नहीं पता था सर। अच्छा, आपकी दवाई के साथ एलोपैथी नहीं खा सकते? सी दिस इज हाउ ही, बड़ा है ना, बड़े भोलेपन में वो बच्चा आपसे पूछता है, सर आपने कहा था दवाई नहीं खानी, सर मैंने तो बाम लगाई, सर दैट वाज, सर वो तो आयुर्वेदिक होती है। टंग यहाँ आ जाएगी। अगली बार नहीं करूंगा सर, नहीं सर अगली आगे से नहीं। ये आप कहते हो सर पता नहीं था ना, अच्छा आप बता दो और क्या क्या नहीं करना, और उसके बाद फिर वो आपसे लाइट मांग लेगा कि यार बताओ भैया अब क्या क्या नहीं, और कौन से रूल एंड रेगुलेशन। ये छोटा सा टिप आपके खतरनाक केसेस निकाल जाएगा। जब और लेकिन उसी स्टेट में होना चाहिए, मेरा भी ज्यादा खिंच गया हूं मैं, वो उसी प्यारे से पन में जब वो आपसे टिमिड सा घबराया सा पूछता है, सर गलती हो गई क्या, दैट रॉन्ग, so this is a submission to you people. This is how the Dr. Segal's journey from so insignificant things which we thought are dustbin and they have no use, but that made a relevance in the context of the case. केस के कंटेक्स्ट में उसकी वैल्यू थी। और याद रखिएगा कि हमने नॉर्मल स्टेट नहीं लेनी है। बहुत बार हम क्या कहते हैं उसे, वो पहना हुआ है, ये किया हुआ है, डिजीज के दौरान predominant कर जाएगी, what persists and predominates will be the genius in that case. So see this man coming back, just asking, and when a second's going timid, सर गलती हो गई, सर नहीं करूंगा, going to that state, ये उसका रास्ता था। बाकी सब चीजें आप लगा देंगे वो पीछे पड़ी हैं। सो क्या कभी आपने माला देखी? मेरे पास यहाँ पड़ी है बहुत सारी, है ना। आप एक माला का एक सिर्फ बीट को उठाते हैं तो 108 पूरी की पूरी वो माला आ जाती है। द होल नेकलेस कम्स इफ यू पिक द राइट एंड प्रॉपरली, अगर आपकी ग्रिप सॉलिड है, और उससे 108 के 8 मन के पूरे हो जाएंगे आपके। द होल टोटलिटी फॉल्स इनटू पीसेस इन द प्लेस, सॉरी, है ना, दीज पीसेस फॉल इनटू प्लेस टू गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सेज। आई होप इट मेक्स सम सेंस इफ यू फील दिस। मैंने एक बड़ा छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको दी, जो मुझे लगा मैंने है ना पीजीज के लिए वहां दी, जब मेरे पास सिर्फ 14 से 15 मिनट का समय था। मुझे लगा मैं डॉक्टर सहगल का एक फील आपको दे पाऊं कि उस आदमी ने, उस इंसान ने इस इन डेट रूब्रिक्स को विच हैज द सोल आपके लिए अलाइव करके डांस करा दिया। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर सहगल, थैंक यू, यू बीन डूइंग अ बिग नाइस जॉब, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। एंड आई होप ये बच्चे कभी कभी मिलना चाहेंगे दादा से भी, ठीक है ना। अब मेरा मूड आ बिल्कुल गया तो मैं मिलेंगे, बोलता ही जाऊंगा। बिल्कुल मिलेंगे सर, बिल्कुल मिलेंगे। और कुछ है जो मैं आपसे बात करूंगा सर। मेरा एक सपना है कि मैं बताऊंगा सर, नहीं, थोड़ा कोई सा बात डर नहीं, लगता है, कोई बात थोड़ा सा नहीं। डर लगता है सपना सबके नहीं, सामने, हाँ, डरना तो अपनी जगह है ना। मैं अकेले हंसा, में मैंने बोलना। तेरे लिए बड़ी प्यारी सी चीज लिखी थी, वो तभी बताऊंगा जब लिखी। मैं हर एक के लिए कविता लिखी, हर बच्चे के लिए लिखी, हर बच्चा विशेष है, इन सब में एक एक अपना नूर है। एंड बेटा आई डोंट जस्ट, मैं कोई मॉडेस्ट नहीं हूँ। मैंने नेचर से सीखा है कि तुम सब में एक कमाल है। अगर संतरा है तो उसका अपना स्वाद है, केला है तो उसका अपना स्वाद है, और बिल्कुल मैं उस सबका मैं आनंद लेता हूँ। मुझे बड़ा मस्ती आती है। मैं डॉक्टर मान के पास जाता तो पूछो, कई बार इतनी मुसीबतें आई, हंसोगे आप। एक बार मैं इनके पास, इनके घर में लेटा हुआ था, बुखार चढ़ गया। अब इनको लगा इतने लोग बुला रखे हैं, 30 से 40 लोग। मैंने बोला यार चारपाई दे दो, मैं लेटे लेटे करूंगा पूरा। मैंने सुबह से लेकर 8 जो बजे जब तक का मेरे को इन्होंने मौका दिया, आई वॉज लाइंग इन बेड एंड गिविंग अ सेमिन। इनके साथ मस्ती बड़ी की है मैंने, रात के अंधेरों में, दिन के उजालों में, कभी इतनी रात। धुंध होती थी, इतनी फॉग होती थी, तो संगरूर से धूरी पहुंचते ट्रेन लेने के लिए। ये अरे इतनी नालायकी होती थी, तू हंसोगे लियाकत, कि उस वक्त धुरी के स्टेशन पे कोई एक मास्टर को छोड़ के और कोई नहीं होता था, और सूचना भी नहीं होती हाँ थी हाँ गाड़ी आएगी हाँ। कि नहीं आएगी।
रियली अब रियली। मैं पहुंच गया और ये भाग गए सोच के कि सर तो आए नहीं, चलो अब इतनी धूल में पहुंचे नहीं। अरे मैं रात को 12 बजे पहुंचा, जो ट्रेन ने 7 बजे पहुंचना था। अब दो कुत्ते बाहर भौंक रहे, चार, एक रिक्शा वाला कहीं गलती से खड़ा और एक स्टेशन मास्टर, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। और ये कोई सूचना नहीं। मैं उस रिक्शा पे खड़ा हुआ, कुत्ते भौंक रहे थे तो मैं सीट पे पैर ऊपर करके बैठ गया, हम्म। है ना वो। और आसपास मुझे एक याद था, इनके एक डॉक्टर साहब थे जो एलोपैथ थे, उनका घर कई थोड़ी दूरी पे था, अंदाजे से मुझे याद था। और वो जी जमाना था जब अभी वो बंद हुई थी मारकाट, तो कर्फ्यू का जमाना। मैं, आप वो सोचो, रिक्शा के टॉप, मेरा जैसा लंबा आदमी रिक्शा की गद्दी पे खड़ा होके आवाज लगाता है उनके घर, तो उनकी वाइफ, वो भी बेचारे बूढ़े, आवाज देते हैं, वाइफ कहती रहने दो ना खोलो, रात 1 बजे पता नहीं कौन आया है। तो मैं उनको कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब मैं दिल्ली से, डॉक्टर साहब मैं दिल्ली से, ऐसे करके मैं उनके घर एंटर किया रात के 1:30 बजे। अब My पूछ God. लिया गलती से उन्होंने, मैम ने, कि सर वो अच्छा कुछ खाओगे, अब भूख, अब मैं उनको क्या कहूँ, नहीं खाऊंगा। So that was the life. My चलिए, God. थैंक यू वेरी मच, दैट्स वाज Sir, आवर जर्नी। Thank you, sir, sir. Thank you so much. sir, thank you is a very, very small word for everything that you have वंडरफुल। been doing and continuously you've been doing for us all homeopaths all over the world. सेगल मेथड हैज अ ग्लोबल रीच। और हम लोग हमेशा बातें करते हैं। कल परसों ही मैं मयूर से मिला था, तो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट विजुअल सर। तो वी वर जस्ट सेइंग कि अगर उनको हमारी सिस्टम अच्छे से पसंद आ गई तो और भी कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। दिस वाज जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है, जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। सर और थैंक यू। आप सबको पता ही है, आपके सर जो बैठे हैं बड़े वाले, लियाकत सर, इनको भूल गया होगा इन्होंने सवाल क्या पूछा। लियाकत, क्या सवाल पूछा था 2008 में? नहीं याद ना? देखो मैं बताऊंगा फिर। सर फिलोसफी का आपने इतना प्यारा समझाया था सर। मैं सबको समझाता हूँ, वो जो हेल्थ वाला आपने जो बताया था, how to understand how to understand organ, restore the sick to the health। मुझे याद है सर, आपने समझाया था, गिलास में पानी डाल दिया, this is the health the patient has, this much is the disease, you put in the water, pour in the water, the glass becomes full, so you restore the health, the disease goes away। हाँ, तो इतना एक्चुअली सिंपल किसी समझाया मास्टर था। का कहना था, दैट वाज सम मास्टर सेड, मेक द या मैन हेल्दी, द डिजीज विल लीव। तो मुझे लगता था यार, ये यस कौन सा तमाशा है, जी। ये कौन सा तमाशा है कि यार आप हेल्दी बना दो, बीमारियां भाग जाएंगी। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। फिर मुझे समझाने के लिए वो उसको उसको मेरे को सोचना पड़ा यार, हाउ टू गिव यू सिमिली टू सो दैट यू कैन रियली अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड ऑर्गेनॉन इन इजी वे। या, पर तुम्हारा सवाल था, सर से बड़ी है या डू बड़ी है, ये भूल हाँ गए तुमने कब पकड़ा था मुझे। जी 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 जी। अब याद आ गया। पुणे में सर, पुणे में फ्रंट रो पे बैठा था। आई सबसे टेल ज्यादा यू। तंग तुमने मुझे किया था, मुझे लगा यार अब ये सब कुछ हो गया, मैं कह रहा था व्हाट ही सेज एंड हाउ ही सेज, व्हाट ही डज एंड सर व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब भाई साहब पूरा साला वो सन्नाटा छा गया वहां। मेरे को लगा यार अटपटा सा सवाल आ गया है ना, ये बहुत तंग करेगा, ये बहुत, और तेरे को मैंने कहा भी था यार तू तंग बहुत कर रहा है, तू सेमिनार के फ्लो को रोक रहा है, राइट, दैट वाज योर क्वेश्चन। इसी दैट तुम भूल गए, पर मुझे याद है, सालों बीत गए इस बात को। चलिए, हैव अ नाइस डे राइट। एवरीवन। कल फिर मैं सुबह, क्योंकि मुझे 7:30 यहाँ से करीब 30 किलोमीटर है, सुबह सुबह पहुंचना होगा गुरुद्वारे, ठंड होगी, जी जी सर। कीर्तन के लिए जाता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी थैंक दिस, यू है ना। एंड आई एम थैंक एंजॉइंग यू सर। एवरीवन। बेटा आप में से जो जो भी बोलता है, मुझे बड़ी खुशी होती है यार, मैं आनंद लेता हूँ। पर एक थोड़ी सी हिम्मत करना, उसको थोड़ा और प्यार से मांझना है, अपनी तरफ से कोई एंग्जाइटीज या वर्ड्स को पुट नहीं करना है, जी जस्ट सर। फ्लो विद द पेशेंट, आपको बिल्कुल। उसके साथ रहना है Yes, sir. है ना? अपनी समझ नहीं लगानी, माइंड को बाहर रखो। हाँ ऑब्जर्वर क्या होता है बेटा? अच्छा, पहली बात आपने कहा, लास्ट इसको समझ करता हूँ, व्हाट इज एन ऑब्जर्वर? व्हेन यू सिट एग्जैक्ट इन ऑब्जर्वेटरी, यू आर नॉट एग्जैक्ट सपोज टू मिंगल विद द थिंग्स, यू जस्ट पुट, आपने एक लगा दिया, आप मूवमेंट देख रहे हैं, कई बार 6 महीने में पता चलता है मिनिमम एक स्टार मूव किया। जी। यू हैव नो कंट्रोल ऑन हिज मूवमेंट, उसकी मूवमेंट पे, उसके करने पे कुछ भी अधिकार नहीं है आपका। You एग्जैक्टली। are sitting in observatory, so if you are like that, यस। unfortunately when you become a physician and sit as an observer, you put in your own things, वो नहीं करनी है। बिल्कुल। You're sitting in observatory, you have no control on the movement of the stars। वो जो यस। स्काई में हो रहा है,
आपने उसको कूलली ऑब्जर्व करना है यार, that emits the light, that gives the darkness, this is the oath, ये बन रहा है। ये जो ऑब्जर्वेशन है, विदाउट अपनी फील डाले आपने ऑब्जर्व कर, तो आप मार नहीं खाएंगे। जैसे ही आप अपना एक इंटरप्रिटेशन बीच में ऐड ऑन करना चाहते हो, वो गलती कर दे। एग्जैक्टली। यस सर, यस, थैंक डॉक्टर यू। मान कुछ डॉक्टर कहना मेरी चाह रहे हैं? जी मान सर प्लीज। स्टोरी और केक बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच सर। कौन बोला भाई मान ये? सर, मैं स्वाति। स्वाति बेटा? माली, स्वाति माली। जी बेटा। वेरी वेरी गुड, एवरी टाइम she takes part in discussions. नहीं नहीं, स्वाति बड़े is a सारे very बच्चे very बड़े अच्छे बनाए, बस इनसे कहना बहुत अभी कलफ मत लगे इन्हें, अभी कलफ नहीं लगे बेटा, अभी कलफ थोड़ी देर बाद, अभी तो बहुत लंबी दुनिया है, बहुत मजा आएगा। डॉक्टर जी मान कुछ कहना चाह रहे हैं? मान सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ सर मैं तो थैंक्स ही करना था सर का, कि इतनी फिलोसफिकल थिंकिंग है सर की ना। एक जी बार हम अड़ गए कि क्या करें, अब पेशेंट आता है मेडिसिन लेने, हमारा साथ छोड़ता नहीं और उसको वो ठीक भी नहीं हो रहा। तो सर एक लेक्चर देने आए, तो उस समय शुरू हुआ परसीवरेंस। इन्हें बोला कि उस केसेज को, उन केसेज में आप परसीवरेंस लें, और फिर सर ने चार्ट पूरा बना के दे दिया हमें परसीवरेंस का, कि कौन कौन सी मेडिसिन का कौन कौन का रूब्रिक और ऐड करना है, फिर जे मेडिसिन, फिर जे मेडिसिन, फिर जे मेडिसिन। दैट वाज अ इतनी गुड जर्नी विद देन। ये लोगों ने, सर की। इन लोगों ने, मैं वापस चाह रहा हूँ, इन लोगों ने मुझे बड़ा चांस दिया ग्रो करने के लिए, आप समझ रहे हो? लियाकत, इट वाज नॉट मी ओनली, राइट? जी सर। क्या इसको अनम्यूट करना पड़ेगा मुझे? है ना, अनम्यूटेड है ना, राइट? ये अनम्यूटेड है, हम सुन पा रहे हैं सर। आप कभी टीचर बन के अकड़ना मत, बिकॉज अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो किसको पढ़ाओगे? सही है। दे गिव मी द चांस टू ग्रो, मैं इनको लेके आगे यूरोप तक पहुंच पाया। सो हुआ क्या कि अचानक मुझे लगा इट वाज एन एक्सीडेंटली, जैसे होता है, और जो भी आप डिस्कवर करते हैं, वॉक करते हैं, मुझे लगा यार ये तो समझ में आती है कि एक आदमी को रिलीफ आ रहा है, सो ही हैज अ होप, और वो परसिवियर करता, होपफुल आदमी है, उम्मीद है सर, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो मैं दवाई तो खाऊंगा, ये समझ आती थी। थोड़ा एक स्टेप नीचे गया कि यार सर, अब तो शुरू में बड़ी होप थी, सुना था होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है, मैंने समय दे दिया, अब थोड़ी सी सर निराशा हो रही है, अब थोड़ा सा डाउट आ रहा है यार, पता नहीं काम करे, तो अब ये डाउटफुल है लेकिन फिर भी चल रहा है, यहां तक मैं हजम कर पाया। पर मुझे लगा यार ये तीसरी स्टेज आ गई कि डाउट से नीचे चला गया, अब टोटल डिस्पेयर है, फिर भी चल रहा है, ये क्या समस्या आ गई? और जब मैंने इसको वर्किंग की तो 7 दवाइयां आई, जिसमें एलुमिना थी, एकोनाइट थी, सल्फर थी, लेकोसिस थी, जो तीनों स्टेज कवर कर रही थी। तो बड़ी सिंपल सी मैंने इनको बताई, ए से शुरू होते हैं, कि एलुमिना तीसरी स्टेज पे पहुंच के भी, वन इज होपफुल, ही इज परसिवरिंग, यू नो इट, इट मेक्स अ सेंस। वन बिकम्स डाउटफुल, चलो अभी भी कर लेगा, लेकिन डेस्पेयर हो गया है, तो बोला सर ऐसा है कि सर मैं कहाँ जाऊं? एक्चुअली मुझे आप में कोई फॉल्ट नहीं लग रहा है, आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी देर लगाते हो, सब कुछ देखते हो, और मैं और कहाँ जाऊंगा वो भी मुझे नहीं पता। तो मुझे लगा नहीं हो सकता है, अभी नहीं, थोड़ा और में आ जाएगा, वैसे मुझे होप नहीं है। तो एक कंटेंट की स्टेट थी जो एलुमिना में थी, वो आपसे, उसको कोई गिला नहीं था, और वो एक बिना शिकायत के रूप से, सिर्फ आपको बिना कंप्लेन के रूप में नहीं, सिर्फ कम्युनिकेशन थी, कम्युनिकेटिव एंड कंटेंट, कि सर आप हैं, बताना मुझे सर, मतलब सत्य तो ये है कि सर, बुरा ना मानिएगा, सत्य तो यही है कि फर्क तो कोई नहीं है, पर मुझे लगा ये देखो ना, आप सर इतनी मेहनत कर रहे हो, और मैं आपको मतलब आपको छोड़ जाऊं, और मेरे को लगा यार इतनी मेहनत कोई और मुझ पे करेगा। तो आपके 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 वर्क में, आपकी मेहनत में सर मुझे कोई कमी नहीं दिखती, मैं उससे पूरा संतुष्ट हूँ, चाहे मुझे आराम आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे लगा यार ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, देख रहे हैं ना जो उसके वर्ड्स थे। इनसे हमने ये जर्नी शुरू की कि यार जरूरी नहीं कि आपके पास होपफुल वाले लोग परसिवेयर करें, डिस्पेयर वाले भी कर सकते हैं, और उनका क्या रीजन होगा, फिर उनको हर एक मेडिसिन का अलग अलग चार्ट दिया मैंने, डॉक्टर मान, याद है आपको, कि उनके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आएंगे, व्हाट विल मेक देम परसिवियर विद यू, व्हाई दे परसिवियर। दैट वाज द जर्नी एंड वी हैड अ गुड, उस पे 17 दवाइयां उस जमाने में आती थी, अब 23 हो गई थी, धीरे धीरे और बढ़ गई, हाँ और जी, हाँ। उसको हमने काफी, एक बार में खत्म नहीं किया था। तब इतनी अच्छी सुंदरता होती थी कि एक दवाई को भी हम कई बार 5-5 सीटिंग दे देते थे, 8-8 सीटिंग दे देते थे, खूब लंबी उसकी उस पर वर्किंग होती थी, और सब बच्चे लगे, नीलम जूटी होती थी, सब लगे होते थे।
नीलम ने वादा किया, वो अभी तक देखो एक रूबरी ग्लोव्स लेके सुबह खड़ी हो जाती है। गुड। तो ठीक है मानसी, तो उस बात पे चल पड़ी है, हमें बड़ा अच्छा लगा। मुझे लग रहा था नीलम के बाद कौन, तो मेरे को मानसी मिल गई बेटा तेरे को, है ना। ये एक और रोज एक ले आती है अपना, है ना। दैट्स अ गुड हैबिट, दैट्स अ गुड एक्सरसाइज मानसी, कीप इट अप बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है चलो। ठीक है मान साहब, आप सब लोगों को ओके समय हो सर, गया, 8 थैंक बज यू गए वेरी शायद, है मच। ना? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सैगल सर, थैंक यू मथर सर, थैंक यू मान सर, और थैंक यू सभी मेरे बच्चे, मेरे टीम, मेरे कलीग्स, मेरे साथी। और मैं सर स्टूडेंट किसी को नहीं बुलाता हूँ, सारे कलीग्स हैं माशाल्लाह, इनसे भी हम बहुत सीखते हैं, बहुत बहुत सीखते हैं और सीखते रहेंगे। इसीलिए और ये सब हमको ऊर्जा भी देते हैं जीने की, और हमको फील भी कराते हैं कि हम जमीन पर ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आज का दिन मैं एक बहुत बात beautiful कहनी है। चाहूंगा आपके साथ। जी जी सर, जी सर। हाँ, बहुत देर पहले जब मैं सर के पास जाता था सीखने के लिए, पेशेंट लेके जाता था, लाइव पेशेंट मैंने सर के साथ देखे, तो पेशेंट इतने ठीक होने लगे तो मेरे को बहुत ही आश्चर्य होता था कि इतनी सिंगल डोज से इतने अच्छे रिजल्ट मिलते थे इनक्योरेबल केसेस में। तो उस टाइम में डॉक्टर जुगेश सर, वो हम एक ही कॉलेज से हैं, वो मेरे से पीछे थे थोड़ा पढ़ने में, क्लास में। तो वो फर्स्ट ईयर में थे, मैं फाइनल में गया था। तो जब मैं बहुत देर बाद उनको देखा, मैं पहचान रहा था कि मैंने इनको कभी देखा है। तो उनकी बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ऐसा करो, कुछ हम ये सिस्टम को पंजाब में हम शुरू करें ताकि पंजाब वाले लोगों को भी इस चीज़ का फायदा हो। तो मैंने उस दिन से आकर के मेरे सभी दोस्तों के साथ बात की। इनमें डॉक्टर मान थे और भी हमारे साथ डॉक्टर सोमल थे, डॉक्टर रविंद्र सिंह थे, काफी लोगों ने हमने इकट्ठे होके ये काम शुरू किया। और आज पंजाब में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जो बहुत ही अच्छा माइंड सेक्टर में काम कर रहे हैं और सहगल साहब को फॉलो कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर जुगेश सहगल ने हमारी ये यात्रा पंजाब में शुरू करवाई थी उस टाइम में। थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर द वर्ड्स ऑफ विजडम। और एक एक लफ्ज ऐसा लगता है कि ये खत्म ही ना हो, पर क्या कुछ मजबूरियां होती है, बच्चों को पढ़ने जाना है, और फिर हम मिलेंगे सर। थैंक यू वेरी मच, इट इज अ ग्रेट ग्रेट ऑनर, इट इज अ ग्रेट ऑनर टू, सच में आई डोंट हैव वर्ड्स। अब मैं 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरे आंसू बहुत आसानी से निकल आते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और मैं आपके कर्ज में रहना चाहूंगा सर, मैं आपको शुक्र तो करूंगा, शुक्र अदा करना भगवान को, अल्लाह ताला को, वाहिगुरु को बहुत पसंद आता है, इसलिए शुक्र अदा करते हैं। मैं आपके कर्जे में रहना चाहूंगा सर जिंदगी भर, जो भी आप लोग पढ़ाते हैं। आई वुड बी वेरी ऑनर्ड टू बी आपके कर्जे में रहने पे मैं अपना सम्मान। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। विद दिस वी end this session, guys. We end this session to this is begin another session. Next is March, guys. Please remember, March is we celebrate Women's Month. So अगले महीने में हमारी सारी की सारी जो तलवार निकाले झांसी की रानियां आएंगी, नीलम दीदी रहेंगी, मानसी रहेंगी, मेरी बहन मनीषा रहेगी, परी रहेगी। You will see lots and lots of female power in March. So be there, guys. Thank you very much, sir. Thank you. God bless. Thank you. Thank you, sir. थैंक Thank यू you so सर। much. Thank you, sir.